الفاتحة. اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین. لائق صد وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جشن حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں. بدھ کالونی کرلا انجمن خیر المومنین کے تمام ٹرسٹیان اور اس جلسہ کے ارکان. آج آپ کے اس عظیم الشان جشن میں الحمدللہ حضور صاحب الفضیلت مخدوم ابن مخدوم شہزادہ ریحان ملت حضرت علامہ الشاہ قاری محمد تسلیم رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتم القدسیہ آستان عالیہ بریلی شریف تشریف فرما ہیں، جن کی ہم اور آپ زیارت کر رہے ہیں. عمدۃ العلماء سند المدرسین حضرت علامہ عبد الرحیم صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی ناظم اعلیٰ دارالعلوم محبوب سبحانی کا بھی ہم نے اور آپ نے بیان سنا. اسٹیج الحمدللہ علماء ملت اسلامیہ سے پر ہے. ناظم اسٹیج محب گرامی حضرت علامہ فاروق صاحب ایک کے بعد دیگرے سب کو پیش فرماتے رہے. مخیر قوم و ملت جناب الحاج محترم شاہ عالم اور جملہ احباب کی شرکت الحمدللہ ان ارکان کے لیے حوصلہ افزا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے.
تو آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار مجھ سے بھی آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بیان کا آغاز ہو۔ دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار۔ اس وقت حجاج کرام تشریف لے جا رہے ہیں، تو مومنوں کے دل سے پوچھئے ان پر کیا گزرتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہر خوش عقیدہ مسلمان کو حج کی شہادت نصیب فرمائے۔ دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، زر نہیں کہ چل سکوں میں، پر نہیں کہ اڑ سکوں، زر نہیں کہ چل سکوں میں، پر نہیں کہ اڑ سکوں، اور زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں، زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں، آپ گر کرم کریں تو در پہ میں مچل سکوں، آپ گر کرم کریں تو در پہ میں مچل سکوں، در پہ میں مچل سکوں، اپنی بے کسی پہ ہوں حضور اشک بار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، آپ نے بلایا جنہیں وہ خوش نصیب ہیں، آپ نے بلایا جنہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں، یا رسول اللہ ایک نظر ادھر بھی ہو کہ ہم بہت غریب ہیں، ایک نظر ادھر بھی ہو کہ ہم بہت غریب ہیں، ہم بہت غریب ہیں، کب گھڑی وہ آئے گی، کب گھڑی وہ آئے گی ہے جس کا انتظار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، دیکھنے کو طیبہ کی بہار، دل ہے بے قرار آقا، دل ہے بے قرار، شامیانہ رحمتی وہاں پہ تنا ہوا، شامیانہ رحمتی یہاں بھی ہے تنا ہوا، مجمع ملائکہ وہاں پہ لگا ہوا، مجمع ملائکہ یہاں بھی ہے لگا ہوا، ہر کوئی بھکاری اس جگہ کا ہے بنا ہوا،
हर कोई भिखारी उस जगह का है बना हुआ, नूर से भरा हुआ, नूर से भरा हुआ मदीने का दया दिल है बेकरार, का दिल है बेकरार, देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार, का दिल है बेकरार, दिल है बेकरार, दिल है बेकरार। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान से हस्सान बोले सुभान अल्लाह, खुदाए हामिल कुरान बोले सुभान अल्लाह, गुलाम मोती ईमान बोले, वो नुक्तारस दकीका दान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, वाहसन मिन कलम तरक्कत आईनी वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, हजार बार बुशोयम दहंज मुश्को गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीश। हजरात, आज मैंने अपने बयान को तौबा पर रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वो तूबू इलल्लाह जमिया अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम सबके सब मुकम्मल तौर पर तौबा करो ए मोमिनो ताकि फलाह पाओ। अल्लाह ताला ने फलाह पाने का जरिया, कामयाबी का जरिया अपने बंदों के ताल्लुक से जो इरशाद फरमाया, कुरान अजीम की दूसरी आयत करीमा है जिसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं। रब ताला का फरमान है, ए मेरे बंदो अपने गुनाहों से तौबा करो और मुझ पर ईमान लाओ। जो अपने गुनाहों से तौबा करके मुझ पर ईमान लाए और अमले सालेह किए, रब ताला फरमाता है वो हमेशा जन्नत में रहेंगे, और जिन्होंने ईमान कबूल ना किया और अमले सालेह के करीब नहीं गए वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। रब ताला इरशाद फरमाता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून, बेशक जो ईमान लाए और अमले सालेह किए उनके लिए बेशुमार अज्र है। रब ताला का इरशाद कुरान अजीम में है, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा। अब आप गौर फरमाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, अंजुमन लगी हुई है, सहाबा बैठे हुए हैं, अमले सालेह की बात चल रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, तौबा का दरवाजा जब तक पश्चिम से सूरज नहीं निकलेगा तब तक खुला हुआ है। एक बंदा गुनाह करता है और तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों देखो, इस मेरे बंदे ने गुनाह किया फिर तौबा किया, फिर गुनाह किया फिर तौबा किया, फिर गुनाह किया फिर तौबा किया। ये इस उम्मीद पर तौबा करता जाता है कि मैं गफूरुर रहीम हूं, मैं इसके गुनाहों को माफ करने वाला हूं, तो मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी खता को माफ कर दिया। और फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, उससे गुनाह करने की तौफीक छीन ली जाती है। यही वजह है उलमा तशरीह फरमाते हैं कि अगर किसी को ये पता लगाना हो कि मेरी तौबा कबूल हुई कि नहीं, मैंने अपनी गलती पर तौबा की और रब ताला की बारगाह में मेरी तौबा कबूल की गई कि नहीं, तो वो अंदाजा लगा ले कि जिन गुनाहों से वो तौबा कर रहा है, अगर उन गुनाहों को फिर वो नहीं कर रहा है और उनके करीब नहीं जा रहा है, तो यकीन और उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया। जब बंदा रब की बारगाह में आंसू बहाता है और नदामत के आंसू उसके गिरते हैं, तो याद रखो मोमिनो,
नदामत के आंसू रब की बारगाह में बड़े कीमती हैं। डॉक्टर इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज से कहा कि मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अर्क़े इंफियाल के। नदामत का एक आंसू अगर गिरता है तो नजात का जरिया वो बन जाया करता है। खौफे इलाही और नदामत पर जो आंसू के कतरे बहते हैं वो गुनाहों को ऐसे धो देते हैं, ऐसे धो देते हैं गोया उस बंदे ने गुनाह नहीं किया। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम के दौर का एक बड़ा भारी मुजरिम था। इतना जुर्म उसने किया था, इतना जुर्म किया था कि अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, मूसा पैगंबर पूरा शहर इसकी बुनियाद पर तबाहियों के दहाने पर जा रहा है, हमारा कहर इन शहर वालों पर नाजिल होगा। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरा मौला वो तेरा कौन सा बंदा है? रब ताला ने उसकी निशानदेही फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको शहर से निकलवा देते हैं जिस आबादी में वो जाकर के ठहरता है। रब का हुक्म हुआ, मूसा ये आबादी भी तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, इस आबादी से भी इसको निकाला जाए। चुनांचे उसको आबादी से भी निकाल दिया गया। इतना खाती वो था, इतना पापी था, इतना गुनहगार था। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना बड़ा गुनहगार था कि पैगंबर के जरिया से शहर से निकाला जा रहा है। वो कितना बड़ा गुनहगार था कि आबादी में कयाम करता है लेकिन आबादी में भी उसको नहीं रहने दिया जाता है। वो एक पहाड़ में जाता है और पहाड़ के खोह में, गार में पनाह अख्तियार कर लेता है, वहीं पर वो रहने लगता है। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, बीमार हुआ, ज़ोफ़ो नक़ाहत की बुनियाद पर वो उठ नहीं सकता है। तब तक वो रब की बारगाह में रो पड़ा, ए मेरे मौला इस वक्त मुझ जैसा मजबूर कौन है, मुझ जैसा परेशान कौन है? ए परवरदिगार आलम, मैं कुछ भी सही मगर तेरा बंदा हूं। इलाहुल आलमीन, मैंने बहुत बड़ी खता की है। परवरदिगार, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर तेरी बारगाह में मेरी गलती न माफ की गई तो कहां माफ की जाएगी? ए मेरे परवरदिगार, काश मैं गलती ना किए होता तो आज आबादी में होता, मेरे बाल बच्चे मुझे सहारा देते, मेरे रिश्ता कारिब के लोग मुझे सहारा देते। परवरदिगार आलम, तूने ही फरमाया है कि जब मेरा बंदा मुसीबत में मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। ए रहमुर राहिमीन, अब मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करके तेरी बारगाह में पनाह तलब कर रहा हूं। ए मेरे मौला, मुझे पनाह अता फरमा दे। परवरदिगार, मुझे सहारा अता फरमा दे। वो बंदा रो रहा है, ज़ारो कतार उसके आंसू गिर रहे हैं। मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। डॉक्टर इकबाल का शेर इसी तरफ इशारा करता है। वो बंदा रोए चला जा रहा है, इतना आंसू गिर रहा है उसका, इतने आंसू गिर रहे हैं कि जमीन भीग जाती है। उसने अचानक देखा कि उसका बाप उसके सामने हाजिर है, उसकी बीवी उसके सामने हाजिर है, उसके बच्चे उसके सामने हाजिर हैं। फरिश्तों को रब ताला ने मुतशक्किल फरमा करके उनकी शक्ल में भेज दिया। अब उसको वो तसल्ली दे रहे हैं और उसकी तीमारदारी कर रहे हैं। जब उसका इंतकाल हुआ तो रब ताला ने उसको बख्श दिया। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ये मूसा पैगंबर जाओ, जिसको आबादी से निकाला गया था और जिसको शहर से निकाला गया था, जाओ उसकी तजीज़ो तकफीन का इंतजाम करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार, वो तो इतना बड़ा गुनहगार था कि गुनाहों की बुनियाद पर उसको शहर से निकाला गया, गुनाहों की बुनियाद पर उसको आबादी से भी निकाल दिया गया। ए परवरदिगार आलम, उसकी कौन सी नेकी तेरी बारगाह में पसंद आ गई? तो रब ताला का हुक्म हुआ, ए मूसा पैगंबर, वो सियाकार बदकार तो बहुत था लेकिन ए मूसा पैगंबर, उसने मुझ पर भरोसा करके और सिर्फ मुझ पर भरोसा करके मुझे याद करना शुरू किया और वो अपनी खताओं से माफी मांग करके मेरी बारगाह में आंसू बहाना शुरू किया। ए मूसा, मेरी बारगाह में नदामत के आंसू बहुत मकबूल हैं, मैंने उनके उसके आंसुओं को कबूल फरमा लिया है। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम आते हैं और उसकी तजीज़ो तकफीन का इंतजाम करते हैं। आप जरा देखो, कहने का मतलब यह है कि रब की बारगाह में नदामत के आंसू कितने कीमती हैं। मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अर्क़े इंफियाल के। नदामत के आंसू बड़े कीमती हुआ करते हैं। आइए अब आप जरा अपनी जमीन को आप हमार कीजिए और ज़हन फिक्र को साफ करते हुए चलिए। आज सजाएं मुतय्यन हैं, आज जराइम पर हर हर सजा मुतय्यन कर दी गई है। अगर कोई हुकूमत की बगावत करता है तो उसको देशद्रोही करार दे करके मुल्क से, शहर बदर से कर दिया जाता है, मुल्क से निकाल दिया जाता है। अगर वो खलफशार मचाने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी ताज़ीरात हिंद के दफात हैं और ताज़ीरात हिंद के दफात में वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। हर हर जुर्म की सजा मुतय्यन कर दी गई है। लेकिन अगर सजाओं पर माफी मांगी जाए और सजाओं पर नदामत के आंसू बहाए जाएं तो आज दुनिया में आप हर हर सजा पर माफी मांग करके छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हो। लेकिन आओ देखो, ये रब की बारगाह है, रब की बारगाह में तुम माफी मांगो, रब तुम्हें माफ फरमा रहा है। रब की बारगाह
बारगाह में तौबा करो, रब तुम्हारी तौबा कबूल फरमा रहा है। रब की बारगाह में नदामत के आंसू बहाओ, रब ताला तुम्हारे आंसुओं की कीमत तुम्हें दे रहा है। रब की बारगाह में रो, तुम्हारे रोने की कीमत अदा हो रही है। रब की बारगाह में जब बंदे मोमिन रोता है तो रब का फरमान है अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालो तुम फलाह पाओगे। तुम सबके सब मुकम्मल रब की तरफ तौबा करो। आइए जरा आप मुलाहजा फरमाते चलिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तौबा पर कितना जोर दिया है। ये सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। आखिर इस बात को मेरे सरकार ने कब फरमाया? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर हदीस किसी न किसी मौका पर है। नबी अपने उम्मतियों को कोई भी कानून दे रहे हैं तो हर कानून मेरे सरकार किसी न किसी मौका पर दे रहे हैं। मेरे सरकार ने यह कब इरशाद फरमाया था कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। तो देखिए सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं। सहाबियों की जिंदगी को मुताला कीजिए तो पता चलता है कि अगर उनसे कोई खता वाक़ हो जाती थी और कोई गलत काम वाक़ हो जाता था तो रब के महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे, इसलिए कि उनके सामने कुरान की आयत करीमा है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए महबूब अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और तुम्हारी बारगाह में आ जाएं और तुम उनके लिए माफी मांगो तो रब ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, माफ फरमाने वाला है। पता ये चला कि रब ताला अपने बंदों की माफी के लिए दरवाजा अपने महबूब का बता रहा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम्हें माफी का परवाना मिलेगा तो महबूब की चौखट से मिलेगा, तुम्हें नजात का परवाना मिलेगा तो महबूब की चौखट से मिलेगा। जो कुछ तुम पाओगे महबूब की चौखट से पाओगे, बख्शिश पाओगे तो महबूब की चौखट से पाओगे। महबूब की चौखट को छोड़ करके तुम दर दर फिरते रहो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दुरूद, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दुरूद। अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा बताया जाता है तो मैं सहाबा की मुक़द्दस जिंदगी अर्ज कर रहा हूं कि जब उनसे कोई खता वाक़ होती है तो महबूब की बारगाह में हाजिर होते हैं। सहाबा का तरीका तो यह है कि वो महबूब की बारगाह में हाजिर होकर अपने जुर्म को बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह ये खता मुझसे हुई है, या रसूल अल्लाह ये गुनाह मुझसे हुआ है, या रसूल अल्लाह ये पाप मुझसे हुआ है, या मेरे सरकार इन पापों पर जो सजाएं इस्लाम की तरफ से मुतय्यन की गई हैं उन सजाओं को बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, अंजुमन सजी हुई है। तब तक एक सहाबी हजरत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आंसू बहाते हुए पहुंच जाते हैं। या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा खाती हूं, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बताओ तुमसे कौन सी खता हुई है। हजरत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगते हैं, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा जुर्म हुआ है कि बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, बताओ तो आखिर तुम्हारा जुर्म कौन सा है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे वो खता हुई है, या रसूल अल्लाह के बयान कर रहा हूं मेरे सरकार। तब तक हजरत माइज की जबान फिर रुक जाती है। अल्लाह के हबीब और तमाम सहाबा तवज्जो किए हुए हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा जुर्म यह है, या रसूल अल्लाह मैंने ज़िना कर लिया है। इतना कहना था अल्लाह के हबीब ने अपने मुक़द्दस रुख़ अनवर को घेर लिया। हज़रत माइज़ रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी खता माफ की जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा मुजरिम हूं, सरकार मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, या रसूल अल्लाह मुझे हिलाकत से बचाइए और पाक फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह ये जुर्म मैंने कर लिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जरा इसके मुंह को सूंघो, इसने शराब तो नहीं पी लिया है।
तमाम सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नहीं, वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में आपके सामने अपने जुर्म का इकरार कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह मैंने शराब नहीं पिया है, या रसूल अल्लाह मुझसे ये खता हो गई है सरकार, मैं आपकी बारगाह में माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ए मेरे सरकार, इस जुर्म पर इस्लाम के तरीके से जो सजा मुझ पर आयद हो रही हो मैं सहने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्माम हुज्जत फरमाते हैं। ज़हन फिक्र देने का मकसद यह है मुसलमानों कि आप जरा गौर फरमाइए, ये सहाबी रसूल हैं, इनसे खता हो रही है तो महबूब की बारगाह में हाजिर होकर के ये माफी मांग रहे हैं। इनको मस्जिद में भी तो जाना चाहिए, इनको जाकर के सजदा भी तो करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहले हाजिर हो रहे हैं कि पहले ये जुर्म महबूब की बारगाह में बयान किया जाए और इस पर आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ताज़ीर फरमाएंगे वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, देखो इकबाली मुजरिम है हजरत माइस को ले जाओ और सजा दो। इस्लाम में ज़िना पर सजा संगसार करने के लिए हुक्म है। उस इस्लाम में ये सजा अजीम सजा दी गई है। अगर संगसार का तरीका आज भी राइज कर दिया जाए तो ये गुनाह दुनिया से खत्म हो जाएगा। जब सहाबा का दौर था और खुलफाए राशिदीन का माहौल था, इस गुनाह के मुर्तकबीन दिखाई नहीं दे रहे थे। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि सारी दुनिया में हर तरफ मुसलमान यही चिल्लाते हैं कि निज़ाम मुस्तफा को लागू किया जाए, रसूलुल्लाह के कानून को लागू किया जाए। मैं अर्ज करता हूं सही है, अगर निज़ाम मुस्तफा की बात की जा रही है तो बात सही की जा रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को लागू करके देख लो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामी कवानीन दस्तूर हयात मुरत्तब फरमाते हुए आपको दिया जिंदगी गुजारने के लिए, उस पर अगर जिंदगी चलाई जाए तो चोर का हाथ काटा जाएगा, शराबी को कोड़े मारे जाएंगे, जानी को संगसार किया जाएगा, झूठ बोलने वाले को सजा दी जाएगी, बेनमाजी को कैद किया जाएगा, शराब की भट्टियां जला दी जाएंगी, ये सारे कारखाने बंद कर दिए जाएंगे, गुनाहों के अड्डे खत्म कर दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब बताओ इंसान अमन शांति से रहेगा कि नहीं? इंसान इत्मीनान से रहेगा कि नहीं? इंसान सुकून से रहेगा कि नहीं? इंसान पाबंदी से रहेगा कि नहीं? इंसान मुतमईन रहेगा कि नहीं? आओ जरा देखो, ये मुकद्दस सहाबा की जमात है। हज़रत माइस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ले जाया जा रहा है और ले जाकर के पहाड़ी के ऊपर खड़ा किया गया। अब हज़रत माइस को पत्थर मारा जाने लगा। हज़रत माइस भाग रहे हैं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब सारे लोग हज़रत माइस को संगसार करके वापस आए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत पूछी, बताओ माइस को जब संगसार किया जाने लगा था तो उनकी कैफियत क्या थी? हज़रत खालिद बिन वलीद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम सब माइस को मार रहे थे, हमारे हाथ में एक हड्डी थी ऊंट की, या रसूल अल्लाह, और मैंने उस हड्डी से ऊंट के मारा माइस की खोपड़ी में, या रसूल अल्लाह, जैसे वो हड्डी लगी माइस की खोपड़ी फटी, खून का फव्वारा जारी हुआ और मेरी आस्तीन पर पड़ा, या रसूल अल्लाह। मैं पीछे हटा ये कहते हुए, ये किस पापी का खून लग गया है? तब तक दूसरे सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब माइस को मारा जा रहा था तो आपको पुकार रहे थे, इतना सुनना हुआ कि अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए, मेरे सरकार रोने लगे। इरशाद फरमाते हैं, जब माइस ने मुझको पुकारा था तो तुम लोगों ने छोड़ क्यों नहीं दिया? खुदा की कसम, जब पहला पत्थर माइस को लगा है तो माइस ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि पूरे मदीना वालों के लिए माइस की तौबा काफी हो गई। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ तो इशारा फरमाते हैं कि गर्चे हैं बेहद कुसूर तुम गफूर और बख्श दो जुर्मों खता तुम पे करोड़ों दुरूद। जुर्म नारे रिसाला हज़रत बख्श दो जुर्मों खता तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रत माइस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौबा का हाल यह है, वो तूबू इलल्लाह जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये ईमान वालो तुम फलाह पाओगे, मुकम्मल तौर पर रब की बारगाह में तौबा करो। आइए आप जरा देखते चलिए कैसे तौबा का माहौल है, किस तरह से सहाबा अपने जुर्म पर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के और अर्ज करते हैं,
ہیں یا رسول اللہ میری یہ خطا ہے، یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ دیکھو پیارے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے، آئینے کی طرح سے چمکتا ہے، لیکن جب اس سے خطا ہوتی ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر وہ داغ بڑھتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر داغ بڑھتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر داغ بڑھتا ہے، اس کے پورے دل کو وہ گھیرے میں لے لیتا ہے، اور جب بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اس پر چمک نہیں رہ جاتی ہے، تو اب اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف نہیں لگتی ہے، اس کی طبیعت ہمہ وقت برائیوں کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے تو اس کا دل مزمحل ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت مر چکی ہوتی ہے، اس کے اندر روح تو ہوتی ہے مگر روحانیت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ دل تمہارا جو تھا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ اور ایک بات عرض کروں، انسان اگر غور کر لے کہ رب تعالیٰ نے آخر اس کے دل کو کس لیے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو پیدا کیا دیکھنے کے لیے، زبان کو پیدا کیا چکھنے کے لیے، ناک کو پیدا کیا سونگھنے کے لیے، اعضاء کو پیدا کیا، سارے اعضاء کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر دل کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اہل عرفان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندے، اپنے تمام اعضاء سے تو اپنے کام لیتا رہا، مگر دل میں مجھے تو اپنا میرا خوف رکھے رہا اور دل میں مجھے یاد کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے اپنے لیے دل کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ مومن ہیں تو آپ کے قلب کو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کے قلب پر اللہ کے جلوے کا عرفان نازل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے، اور جب عرفان کا نزول ہوا وہ عارف کہا جانے لگا تو اب اپنی نگاہ سے وہی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہ بہت کچھ دیکھتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے عرفان کی منزل مل گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو۔ جب اپنے دل اور نفس کو پہچان کر کے قابو میں رکھو گے تو گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے۔ کے بعد دل گناہ کی طرف بڑھتا ہے، پھر اعضاء اور جوارح کام کرنے لگتے ہیں، پھر خطائیں ہونے لگتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، بات ذرا پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھو۔ آج بات ہو رہی ہے قلب و روح کی صفائی کی پیارے، روحانیت مر گئی ہے اور روح آپ کے اندر موجود ہے، آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اسی لیے نہ تلاوت قرآن میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ نماز پڑھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ ذکر اللہ میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ مسجد کی طرف جانے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ خانقاہوں میں بیٹھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ علماء کی مجلس اچھی لگ رہی ہے، نہ دین کی باتیں اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ روحانیت مر چکی ہے اور آپ کا مکمل دل سیاہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب کوشش کر کے نیکی کی طرف جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنی خطاؤں سے اور رب کو یاد کرنے لگتا ہے تو وہی دھبا اس کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب اس کے دل کا دھبا صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلب ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی قلب کے تعلق سے ارشاد رسول ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب اس کی طبیعت اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا کام جنتی ہونے کا وہ کار ڈالتا ہے کہ صرف جنت اس سے ایک بالشت رہ جاتی ہے اور وہ پھر پلٹ پڑتا ہے، پھر جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا غلط کام کرتا رہتا ہے کہ ایک بالشت اس سے جہنم رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ پڑتا ہے اور جنتیوں کا کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا وہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق جس کو توبہ کی عطا فرما دے وہ بندہ باخوش قسمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجئے کہ التائبون الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کی سب کو دعوت دی گئی ہے، سارے لوگ اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں، سب اپنی خطاؤں سے توبہ کریں۔ ہر زمانے میں ہر رسول اور ہر پیغمبر کے امتیوں کو یہ حکم آتا تھا کہ اپنے امتیوں کو توبہ کرنے کا حکم دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہی کا دور ہے،
कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वो दुआ मांगने लगे, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला बारिश नहीं हो रही है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ए मूसा पैगंबर तुम्हारी दुआ कैसे कबूल की जाए? तुम्हारी मजलिस में एक चुगलखोर बैठा हुआ है, वो चुगली किया करता है। अब आप जरा गौर फरमाइए, पैगंबर दुआ मांग रहे हैं और महफिल में चुगलखोर बैठा हुआ है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। पता ये चला प्यारे की चुगलखोरी बहुत बड़ा जुर्म है। चुगली करना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि चुगलखोर को कब्र में अजाब दिया जाता है। आज लोग चुगलखोरी को मामूली गुनाह समझते हैं और एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचा करके लगाई फसाई करने में कोई दरेक नहीं करते हैं। हर मकतबे फिक्र और हर मजहब में चुगलखोरी को बुरा करार दिया गया है और चुगलखोरी इतना बड़ा गुनाह है प्यारे कि दुनिया का आधा फसाद चुगलखोरी से होता है। चुगलखोरी से मुल्क लड़ जाता है, पड़ोसी से लड़ जाता है, दोस्त से लड़ जाता है, शोहर बीवी में लड़ाई हो जाती है, ताजिर में लड़ाई हो जाती है, अहले इल्म में लड़ाई हो जाती है, अहले नजर में इख्तिलाफ हो जाता है। चुगलखोरी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोरों से बचने के लिए और चुगलखोरी से बचने के लिए कितनी ताकीद फरमाई है। आओ जरा देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, कितना गुनाह पर सजा है वो बता देना चाहता हूं। मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा की जमात जा रही है, तब तक सामने दो कब्रें नजर आई। अल्लाह के हबीब ठहर जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, लाओ खजूर की टहनी लाओ। खजूर की टहनी लाई जाती है। सरकार ने दोनों को दो हिस्सा किया और एक को कब्र के एक हिस्से पर रख दिया, दूसरे को दूसरे हिस्से पर रख दिया। सहाबा से आप इरशाद फरमाते हैं, देखो मैंने इन दोनों कब्र वालों को देखा, इन पर सख्त अजाब हो रहा है, मगर मामूली गुनाह से अजाब हो रहा है। अल्लाह के हबीब से अर्ज करते सहाबा, या रसूल अल्लाह इन पर अजाब वो कैसे हो रहा है? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, एक तो है जो चुगलखोरी से नहीं बचता था, उसको अजाब दिया जा रहा है, और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, उसको अजाब दिया जा रहा है। मैं उन नौजवानों का ज़हन फिक्र लेना चाहता हूं जो मुसलमान कौम में पैदा होकर के आज पेशाब करने का कौन सा तरीका अपना लिए हो। भारत की सरजमीन पर जहां जहां भी पेशाब करने की जगह बनाई गई है, वो ऐसे तौर पर बनाई जाती है कि मुसलमान नजासत में मुलव्विस हो जाए। रेलवे में भी आप अंदाजा लगाओ किस तरीके से गलत तौर तरीका इख्तियार किया जाता है। मुसलमान नौजवान पेशाब के छींटों से बचा करो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता है, कब्र में उसको सख्त अजाब दिया जाएगा, वो कब्र में मुअज़्ज़ब कर दिया जाता है। अल्लाह के हबीब उसके अजाब को अपनी निगाहों से मुलाहजा फरमा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और दूसरा चुगलखोरी से नहीं बचता था। पता ये चला प्यारे कि चुगलखोरी में जो मुलव्विस रहता है उसको कब्र में अजाब दिया जाएगा। कब्र का अजाब चुगलखोरी से है। एक बात आ गई ज़िम्नन हजरत, तुम्हें अर्ज करता चलो कि अजाब कब्र कैसे कैसे गुनाहों से होते हैं, कब्र में अजाब किन किन गुनाहों की बुनियाद पर आते हैं। तो चुगलखोरी से कब्र में अजाब होगा, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब होगा, माँ बाप की नाफरमानी करने से कब्र में अजाब होगा। कब्र में अजाब कैसे होगा? नमाज छोड़ देने पर कब्र में अजाब है, चुगलखोरी से कब्र में अजाब है, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब है, माँ और बाप की नाफरमानी करने पर कब्र में अजाब है। सुनो, माँ और बाप की नाफरमानी करने पर कब्र में कैसे अजाब होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, मेरे सहाबा जलवा फरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक आदमी मर गया है और मरने के बाद वो अपनी कब्र में से गधे की शक्ल में आवाज निकालता है और बोलता है, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जानते हो क्यों गधे की शक्ल में बोलता है? जब वो नौजवान था और उसकी मां आवाज देती थी तो अपनी मां को कहा करता था कि क्या तू गधे की तरह बोलती रहती है? मरने के बाद उसको कब्र में अजाब दिया जा रहा है और उसकी आवाज गधे की तरह आ रही है। पता ये चला कि मां की नाफरमानी करने पर कब्र में अजाब दिया जाता है, नमाज छोड़ देने पर कब्र में अजाब दिया जाता है, चुगलखोरी पर कब्र में अजाब दिया जाता है, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब दिया जाता है। प्यारे जरा देखो, मुलाजा करते चलो, कब्र के अजाब से तुम्हें बचना है कि नहीं? कब्र में अजाब दिया जा रहा है इन सारे गुनाहों से, और बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जिनकी बुनियाद पर कब्र में अजाब दिया जा रहा है। अभी मैं वो सारी फाइल आपके सामने रखता चलूंगा इंशाअल्लाह। आप जरा मुलाजा करो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। बात चली थी हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, मौला चुगलखोर है इसलिए दुआ नहीं कबूल हो रही है। हाँ, चुगलखोर महफिल में मौजूद है, या अल्लाह निशानदेही फरमा दे,
उस चुगलखोर को निकालना चाहता हूं महफिल से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मूसा निकालने की जरूरत नहीं है। रब कितना बड़ा रहीम और करीम है, जरा मुलाहजा फरमाइए। रब ताला अपने बंदे को रुसवाई से बचा रहा है, ये उसका काम नहीं है तो क्या है। रब ताला निशानदेही फरमा देता, हज़रत मूसा उस चुगलखोर को निकाल देते, चुगलखोर रुसवा हो जाता, मगर नहीं, रब का हुक्म नाजिल हो रहा है, मूसा निकालने की जरूरत नहीं है। एक आम ऐलान कर दो कि चुगलखोर लोग अपने चुगलियों खोरियों से तौबा कर ले, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसमें जो चुगलखोर हो अपने गुनाह से तौबा करे। अब सारे लोग तौबा कर रहे हैं, जो चुगलखोर था वो भी तौबा कर लेता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, उनकी दुआ कबूल हो जाती है और फौरन बारिश होने लगती है। यहीं से पता चला प्यारे कि बारिश रुकती कैसे है। जब चुगलखोरों की कसरत हो जाए, जब जानियों की कसरत हो जाए, तब बारिश रुक जाती है। जब चुगलखोरों की कसरत हो जाए तब बारिश रुक जाती है। भूखमरी के शिकार लोग कैसे होते हैं, जब चुगलखोरी आम हो जाए तो भूखमरी के शिकार हो जाया करते हैं। और सुनो प्यारे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सवाल अर्ज किया गया था, या रसूल अल्लाह ये आफतें कैसे आया करती हैं सरकार, ये जलजले कैसे आया करते हैं, ये फितने कैसे उठा करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तबाहियां कैसे आया करती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर कुर्बान जाओ, मेरे सरकार इरशाद फरमा रहे हैं कि जब कयामत करीब होगी तो जलजले कसरत से आएंगे, और जलजले कसरत से इसलिए आएंगे कि ज़िना आम हो जाएगी, शराबखोरी आम हो जाएगी, लोग शराब ऐसे पिएंगे जैसे पानी पी रहे हों, लोग ज़िना ऐसे करेंगे जैसे जानवर आपस में रह रहे हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये माहौल पाया जा रहा है कि नहीं, ये तरीका पाया जा रहा है कि नहीं, क्या दुनिया भर के लोगों को दोष दे रहे हो। सुनो प्यारे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो। रब्बे कायनात के महबूब इरशाद फरमा रहे हैं, और सारी बातें गलत हो जाएं मगर महबूब का फरमान गलत नहीं होगा। बताइए चला कि अगर फलाह पाने वाले हो और कामयाबी की दौलत समेटना चाहते हो तो तुम्हारे लिए आज भी जरूरत है कि रब की बारगाह में अपनी खताओं से माफी मांगो। वो तूबू इलल्लाह जबिया, तुम सबके सब मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ तौबा करो। अय्युहल मोमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों ताकि फलाह पा जाओ। आओ जरा देखो, यही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। आज हमसे जब खता होती है और हम लोगों से गुनाह हो जाते हैं तो हमसे ये तौफीक नहीं होती कि कम से कम हम मस्जिद में जाएं और अपने रब के हुजूर अपने सर को झुकाएं और रो रो करके माफी मांगे। ये सहाबा का दौर था, सहाबियों की जिंदगी का कैसा माहौल है कि अगर उनसे कोई खता हो रही है तो अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। चुनांचे ये देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, तब तक एक खातून सरकार की बारगाह में हाजिर होती है रोती हुई, या रसूल अल्लाह मैं बहुत सियाहकार औरत हूँ, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़ी खता की है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, खातून बताओ तुमने कौन सी गलती कर दी है। वो सिसकियां लेकर के रोने लगती हैं, या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी मुजरिमा हूँ कि सरकार अपने पाप को बयान करते हुए दरबारे रिसालत में हया आती है। या रसूल अल्लाह अपने मुंह को कैसे खोलूं, या रसूल अल्लाह अपनी खता कैसे बयान करूं, या रसूल अल्लाह मैं उम्मीद से हूं, या रसूल अल्लाह ये मेरे गुनाह का नतीजा है, सरकार मुझसे ज़िना हो गया और ज़िना की बुनियाद पर या रसूल अल्लाह मुझे हमल है, या रसूल अल्लाह मैं हिलाक हो गई, मुझे पाक फरमा दीजिए। वो रो रो करके दरबारे रिसालत में अर्ज कर रही है। अल्लाह के हबीब ने अपने चेहरे नबूवत को फेर लिया, उन्होंने दूसरे साइड से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिमा हूं, माफी के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूं, या रसूल अल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फिर दूसरे समत अपने चेहरे अनवर को फेर लिया, फिर उधर से हाजिर होकर के अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मैं इकबाली मुजरिमा हूं, सरकार मैंने गुनाह किया है, जिस गुनाह पर जो सजा शरीयत ने मुतय्यन की है या रसूल अल्लाह मैं सहने पर तैयार हूं, या रसूल अल्लाह मुझे आखिरत की सजा नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं, अगर यहां से मुझे पाक ना किया गया तो फिर मैं मुंह अपने रब को क्या दिखाऊंगी। जरा उस सहाबिया का ज़हन फिक्र देखो, अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा देखो ये दीवानी तो नहीं हो गई है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में हूं, मैं दीवानी नहीं हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अब करम मुलाहजा फरमाओ, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, खातून जा तू वापस चली जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब आना। वो खातून वापस चली जाती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदा को मौखर
क्यों फरमा दिया? आज कुछ ज़हन फिक्र रखने वाले ये ज़हन फिक्र दिया करते हैं कि अल्लाह के रसूल को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं ये नज्द की पैदावार ज़हनियत है, और नज्द की बदमाश औलादों को चाहिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावर देखना चाहते हो तो जरा पावर मुलाहजा करो। अल्लाह के हबीब सदा मौखर फरमा रहे हैं, मेरे सरकार की बारगाह में सजा सहने के लिए फौरन हाजिर हो रही है, और नबी सदा मौखर फरमा रहे हैं। यहीं से कई बातें साबित हो गई। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर कोई अपने गुनाह से तौबा करने के लिए हाजिर हो रहा है तो फौरन तौबा करवाई जाए। अगर तौबा करवाने में ताखीर कोई करवा रहा है तो उसके ऊपर भी तौबा आयद हो जाएगी, वो भी मुजरिम करार दे दिया जाएगा। इसलिए कि ऐसा ना हो कि उसको तुम मौखर कर रहे हो और उस दरमियान में उसकी मौत वाक़ई हो जाए, वो इंतकाल कर जाए, दुनिया से चला जाए, तो बिला तौबा के मरेगा, फिर गुनाह का खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। अब अल्लाह के हबीब का पावर मुलाहजा फरमाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सजा को मौखर फरमा रहे हैं। नबी को इख्तियार है, नबी चाहे तो सदा मौखर फरमा दे, और नबी को इल्म गैब भी हासिल है। नबी जान रहे हैं कि जब इसका बच्चा पैदा हो जाएगा तब इसे सजा दी जाएगी। उसके वक्त तक की जिंदगी को भी नबी अमानत के तौर पर बता रहे हैं, ये अभी मरेगी नहीं, बल्कि जा तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। नबी जान रहे हैं, तब तो उसके सदा को मौखर फरमा रहे हैं। तो इसी एक वाकये में कितनी बातें साबित हो रही है नबी के लिए। मेरे सरकार को इल्म गैब हासिल है, तभी तो सदा मौखर फरमा रहे हैं कि अभी जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। अगर मरना होता तो नबी उसको सदा वही दे देते, और नबी को यह भी इल्म गैब है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो जिंदा रहेगा। अगर नबी औरत को मार दे तो पेट में रहने वाला बच्चा भी मर जाएगा, मगर मेरे सरकार औरत को मरवा नहीं रहे हैं, बल्कि सदा मौखर फरमा रहे हैं। और यहीं से यह भी पता चला प्यारे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीब और करीम है। मां के पेट में बच्चा है, जुर्म मां ने किया है, सजा मां को दी जाएगी, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, बच्चे के जान की हिफाजत की जाए। जिस नबी कौनैन ने मां के पेटों में बच्चों के जान की हिफाजत की है, उस नबी पर कुर्बान जाओ प्यारे। आज उस नबी के उम्मतियों का घर लूटा जा रहा है, आज उस नबी के उम्मतियों की दुकानें जलाई जा रही है, आज उस नबी के उम्मतियों को सताया जा रहा है, आज उस नबी के उम्मतियों को परेशान किया जा रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब वापस आना। मेरे सरकार किस तरह से बच्चों पर रहम फरमा रहे हैं, और वाकई मेरे सरकार ने जितना रहम बच्चों पर किया है, दुनिया में कौन है जो करेगा इतना रहम। यही तो वजह है प्यारे कि जब मेरे सरकार ने मक्का को फतेह किया था और मक्का फतह करके मक्का में दाखिल हुए थे तो घरों के दरवाजे खुल गए थे और माओं की गोद से बच्चे उछल पड़े थे। ए माए जरा हमारी गोद ढीली कर दो, हम उस नबी को देखना चाहते हैं जिस नबी ने हमारे मुजरिम बापों को माफ कर दिया है। बच्चियां अपने गोदों से माओं के उछल पड़ी थी और कह रही थी हम उस नबी की जियारत करना चाहती है जिस नबी ने हम बच्चियों के मारने पर पाबंदी लगाई है, जिस नबी ने हम बच्चियों को माओं की गोद में खेलने की तौफीक अता फरमाई है, जिस नबी कौनैन ने बच्चों पर रहम फरमाया है। यही तो वजह है कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए रहमत इलाही हैं और बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत के फूल हैं, बच्चे तुम्हारे लिए जन्नत के फल हैं। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। अब वो खातून चली जाती हैं और जब उनका बच्चा पैदा हो गया तब वो फिर दरबारे रिसालत में हाजिर होती हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा पैदा हो गया, सरकार अब मुझे गुनाह से पाक फरमा दीजिए, सरकार अब मुझे हिलाकत से बचा लीजिए। औरत का जोशो जज्बा मुलाहजा फरमाइए कि वो अपने गुनाह पर सजा सहने के लिए तैयार किस तरह से पाई जा रही है। अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांग रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी निगाहों में कभी आंसू आए हैं कि नहीं? तुमने भी कभी मरने को सोचा है कि नहीं? कब्र के अंदर जाने वाली तारीकी और आने वाले माहौल को सहन में रखा है कि नहीं? तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं है जब कब्र का माहौल होगा और तुम्हारे सारे करतूत के अमाल, सारे करतूत के नताइज तुम्हारे सामने पेश किए जाएंगे। आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह नबूवत उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं औरत आ गई। उसने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार मुझे पाक फरमा दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं अच्छा एक काम कर जा, चली जा, जब तेरा बच्चा दूध पीना छोड़ देगा तब तू वापस आना। अब आप जरा गौर फरमाइए प्यारे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी सजा को मौखर फरमा रहे हैं। मेरे सरकार उस वक्त मां को संगसार करवा सकते थे, लेकिन सरकार मौखर फरमा रहे नहीं, अगर आज ही मां को मार दिया जाएगा तो दूध पीने वाला बच्चा अपने मां के दूध से महरूम हो जाएगा। मेरे सरकार मां के दूध का कितना एहतराम कर रहे हैं, खूने इंसानी का एहतराम नबी कौनैन ने किस तरह से किया है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं जा, ले जा, जब तेरा बच्चा दूध छोड़ देगा पीना तब तू वापस
फसाना। अब वो वापस चली जाती हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती हैं। 2.5 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। अब 2.5 साल के बाद फिर वो सरकार की बारगाह में हाजिर हो रही है, अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है। एक बात और आप जरा देखिए, अब की बार जब वो आई हैं तो अपने आने का अंदाज अजीब लेकर के आई हैं। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो मेरे लिए फिर कोई ऐसी बात दरमियान में आ जाए जिससे सजा मौखर कर दी जाए। इस तरह से वो जल्दी से जल्दी सजा लेना चाहती हैं। उन गुनाहों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा दूध पीना छोड़ दिया। आका फरमाते, दूध पीना छोड़ दिया? हाँ या रसूल अल्लाह। तब तक उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा रोटी का टुकड़ा भी हाथ में लिए हुए है, रोटी का टुकड़ा खा रहा है। उन्होंने अपने बच्चे को पेश कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाजा फरमाते हैं, देखा सरकार ने कि वाकई बच्चा हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर के खा रहा है। नबी कौनैन की आंखों में आंसू छलक आए उस बच्चे को देख करके कि अभी इस बच्चे की ये बच्चा अपनी मां की गोद से महरूम हो जाएगा। मेरे सरकार कितने रहीम करीम हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस औरत का सरपरस्त कहां है। जब जिम्मेदार आए तो सरकार फरमाते हैं, बच्चे को गोद से ले लो। जब बच्चे को गोद से लिया गया, आका इरशाद फरमाते, उस बच्चे को मेरी गोद में दे दो। सरकार ने अपनी गोद में ले लिया। अब आप जरा कुर्बान जाओ, मेरे सरकार अपनी गोद में बच्चे को लेकर के तसल्ली दे रहे हैं, मां की गोद से बच्चा निकल आया है। मेरे सरकार फरमाते हैं, इसके मां के जिस्म को मजबूत कपड़े से बांध दिया जाए। सरपरस्त मजबूत कपड़े से बांध देते हैं और जब ले जाकर के मैदान में उस औरत को संगसार किया जाने लगा तो उसने पुकारा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे सरकार मेरी खबर लो। मगर हुक्म हो चुका था, पत्थर मारे जा रहे हैं, औरत हिलाक हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने जब औरत को पत्थर मारना शुरू किया तो आपको पुकार रही थी। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब मुझे पुकारा था तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे ये नबी है खुदा की कसम, इन्हें जहां भी पुकारो तुम्हारी मदद के लिए काम आ रहे हैं। मुसीबत में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, परेशानी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, खुशी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, मज़ार में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, समंदर में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, दुश्मनों के नरगे में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, कब्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, हश्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं। जब जब इन्हें पुकारोगे ये नबी है तुम्हारे काम आ रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हज़रत अल्लाह मोहद्दीन साहब नारे रिसालत, रहीमाना और करीमाना माहौल को आप मुलाहजा फरमाते चलिए। ये मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे आप ज़हन फिक्र देते चलो। नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी खताएं की है, बड़ा पाप किया है। आप पाप सोच करके करके सोच रहे हो हम नजात ले लेंगे। आप पाप कर करके सोच रहे हो ऐसी महफिलों में हम बैठ करके नजात हासिल कर लेंगे। खुदा की कसम अपने पापों को याद करो, तुम सहाबा से अच्छे नहीं हो। वो सहाबा जो जलवे रसूल का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, अपने आका के सामने अपनी खताओं को अर्ज करके, या रसूल अल्लाह मैं माफी का परवाना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे सजा यही दी जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मैं पापी हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसी मुकद्दस जमात है, इतनी अच्छी जमात है खुदा की कसम कि जन्नत उनके लिए तो खुली हुई है। मगर अगर उनसे कोई खता हो जा रही है तो अपने खता की माफी किस अंदाज से रब की बारगाह में मांग रहे हैं और महबूब को वसीला बुला रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप हमें इस जुर्म की सजा दे दे अपने सामने, या रसूल अल्लाह हम सजा सहने के लिए तैयार हैं। नौजवानों से गौर करो, आज का नौजवान शराब के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अय्याशियों के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अपने हाथ में जब शराब की बाटल अपने दौलत के नशे में लेकर के चूर होता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मुझे कब्र में जाना है और कब्र से मुझे हश्र के मैदान में उठ करके
लीजिए, जर्रे जर्रे का हिसाब किताब देना है। खुदा की कसम, एक एक जर्रा का हिसाब किताब तुम्हें देना है। और सुन लो, किसी मामूली गुनाह को तुम मामूली गुनाह न समझो, और किसी मामूली नेकी को मामूली नेकी न समझो। रब ताला इरशाद फरमाता है, वो मय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वो मय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे, और जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। सुनो, तुम ही पापवाल, तुम ही मालदार नहीं हो प्यारे। सुनो, सलातीन इस्लाम का हाल देखो। ये हारून रशीद हैं। हारून रशीद का दौर आप मुलाहजा फरमाइए। हारून रशीद सुल्तान के लिए बताया जाता है कि हारून रशीद को उलमा से बड़ी मोहब्बत थी। वो उलमा की जमात को हरदम अपनी मजलिस में रखा करते थे। एक मर्तबा हारून रशीद ने एक सवाल किया था उलमा की जमात से कि मैं सारे आलिमों से ये पूछना चाहता हूं कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। ये कैसा सवाल किया गया है। आज अगर कोई ये सवाल कर दे कि पूरे स्टेज के उलमा हमें ये बताएं, कोरला के तमाम आलिमों से मेरा सवाल है कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, तो सारे लोग यही कहकर के खामोश हो जाएंगे कि अगर जन्नतियों का काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, और जहन्नमियों का काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मगर किसी के जन्नती और जहन्नमी की गारंटी कौन ले सकता है। हारून रशीद ने सवाल किया था, मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं। इसी वक्त मुझको बताया जाए मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं। अगर शाह आलम सेठ ये सवाल कर दे कि मौलाना मेराज हमें ये बता दीजिए आप कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, तो सिर्फ इतना कह करके गुजरेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, आप उम्मीद रखिए कि आप जन्नत में जाएंगे, मगर गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आओ हारून रशीद का तर्ज सवाल देखो। वो सवाल कर रहे हैं उलमा से कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, मेरा ठिकाना कहां है, जन्नत में मेरा ठिकाना है कि जहन्नम में है। सारे उलमा खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उठा। उठने के बाद उस बच्चे ने कहा, मैं बताऊं अमीरुल मोमिनीन आपका ठिकाना कहां है। तब तक हारून रशीद चौंक गए और सारे उलमा चौंक गए। सबों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और इतना भारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उलमा के दरमियान में। तब तक हारून रशीद ने उलमा की तरफ इशारा किया कि आप हजरात क्या कहते हैं। आलिमों ने कहा, यह सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। उलमा की मजलिस में बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा जवाब देना चाहता है तो इजाजत है, सवाल का जवाब दे। वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उस बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन पहले एक सवाल का जवाब आप बताइए। हारून रशीद ने कहा, वो कौन सा सवाल है। कहा, ये तो आप बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं। हारून रशीद ने कहा, हाँ। कहा, फिर गुनाह आप क्यों नहीं करते हैं। हारून रशीद ने कहा, मैं खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूं। फिर बच्चे ने वही सवाल दोहराया कि बादशाह आपको कुदरत है गुनाह करने की। हाँ, मैं गुनाह करने की ताकत रखता हूं। और फिर गुनाह क्यों नहीं करते हो। बादशाह ने कहा, खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूं। तब तक उस बच्चे ने आयत करीमा तिलावत कर दी, वो नहन नफ्सा अनिल हवा व इन्नल जन्नता हियल मावा। ए बादशाह सुन, तेरा ठिकाना जन्नत है। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है कि जितने अपने नफ्स को हवाएं ख्वाहिशात नफ्सानी से रोका उसका ठिकाना जन्नत है। तू रब का खौफ करते हुए अपने आप को तमाम ख्वाहिशात नफ्सानी से रोक रहा है, इसलिए बादशाह तेरा ठिकाना जन्नत है। जैसे उस बच्चे ने जवाब दिया, सारे लोग उठ करके बच्चे की पेशानी चूम रहे हैं। बच्चे ने कुरान से जवाब दिया है, वो नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। वही बच्चा आगे चल करके इमाम शाफई बना। वही हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हैं जो मुसलमानों की एक जमात के इमाम हैं। हजरत इमाम शाफई ने जवाब दिया था हारून रशीद को। सुनो, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर ये तो बताइए कि हज के कबूलियत की पहचान क्या है। अगर कोई हाजी हज करने जाता है तो वो कैसे अंदाजा लगाए कि मेरा हज कबूल हो गया कि नहीं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत तहरीर फरमाते हैं अनमारुल बशारा फिर हज व जियारा में कि उसकी 3 अलामतें हैं। अगर हज करने के बाद वो नरम दिल हो गया और उसको गुनाहों से नफरत हो गई और नेकियों से रगबत हो गई तो समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया। ये 3 अलामतें जिसके अंदर हज करने के बाद पाई जाएं, वो उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल फरमा लिया। और हर चीज की अलामत बताई गई है, आप जरा आप देखते चलिए। यही हारून रशीद हैं। मैं कहने का मतलब ये अर्ज कर रहा हूं कि छोटी सी नेकी को आप छोटी नेकी ना समझिए, बल्कि वो बहुत बड़ी नेकी हो जाया करती है। यही हारून रशीद है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून है। जुबैदा खातून को वलियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। जुबैदा खातून वलियों का तस्करा हरदम किया करती थी और औलियाए किराम की जमात भी हारून रशीद के वहां रहा करती थी। एक रोज वही जुबैदा चली जा रही थी। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो बात अभी ला करके ज़हन फिक्र में उतारना चाहता हूं उस पर गौर कीजिए। जुबैदा खातून चली जा रही है
हैं, सहेलियां भी साथ में हैं। एक बुजुर्ग थे हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत बहलोल दाना एक रेत के मैदान में बैठ करके धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। तब तक जुबैदा की नजर पड़ी। जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो बाबा? सलाम करते हुए कहा मैं जन्नत बना रहा हूं। जन्नत बना रहे हो? हाँ। क्या करोगे जन्नत बना करके? मैं जन्नत बनाकर बेचता भी हूं। जुबैदा ने कहा कितने में बेचते हो? कहा 30 दिरहम में। फौरन 30 दिरहम सामने डाल दिया जुबैदा ने और जुबैदा आगे बढ़ गई। जब शाम को जुबैदा वापस आई और शोहरों बीवी इकट्ठा हुए बातचीत होने लगी तो जुबैदा ने कहा आज मैं रेत की तरफ गई थी और बहलूल दाना को वहां मैंने देखा, वो धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा मैं जन्नत बना रहा हूं और बेचता हूं, तो मैंने खरीद लिया 30 दिरहम दे करके। हारून रशीद ने डांटना शुरू किया, तुम अजीब औरत हो, बैतुल माल का खजाना तुमने अपने लिए समझ लिया है, उन दरवेशों को माल और मवाल की क्या जरूरत है? उनके सामने तुमने 30 दिरहम यूं ही डाल दिया, बेकार गया वो 30 दिरहम। हारून रशीद कह करके सो गए। जब सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि जन्नती जन्नत में गए हैं। मैं भी जन्नत में दाखिल हुआ। मैंने देखा एक महल है जिस पर लिखा है जुबैदा खातून। हारून रशीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तक आंख खुल गई। अब हारून रशीद सोच रहे हैं कि आज तो ये बात मैं ख्वाब में देख रहा हूं, लेकिन ये बात कल कयामत के मैदान में हकीकत में सामने आएगी बन करके। चुनांचे हारून रशीद जब दिन का उजाला फैला तो ये भी उसी रेत की तरफ गए। देखा बहलोल दाना बैठे हुए हैं और यूं ही दस्तूर के मुताबिक घर घरौंदा धूल का बना रहे हैं। सलाम किया, पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। जन्नत? कहा जन्नत बना रहे हो? कहा हाँ। कहा किस लिए बना रहे हो? कहा बेचने के लिए। कहा बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितनी कीमत है? कहा 30,000 दिरहम। कहा बाबा बहुत ज्यादा कीमत ले रहे हो, जुबैदा को तो आपने 30 दिरहम में दे दिया है। कहा जुबैदा ने बिना देखे लिया था, तुम देख करके ले रहे हो इसलिए कीमत बढ़ गई है। अल्लाह अकबर। ये वो जुबैदा खातून है। यही जुबैदा खातून का मामला सामने आया। जुबैदा खातून का जब इंतकाल हो गया तो किसी ने पूछा कि जुबैदा खातून तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया? तो जुबैदा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। कहा जुबैदा किस नेकी की बुनियाद पर तेरी मग़फ़िरत हो गई? क्या तुमने जो नहर खुदवाया था इस नेकी की बुनियाद पर तेरी मग़फ़िरत हो गई? कहा नहीं। क्या जो तू औलिया किराम से मोहब्बत रखती थी? कहा नहीं। कहा बहुत मुख्तसर नेकी है, अल्लाह ताला ने उसके जरिया मेरी मग़फ़िरत फरमा दिया। कहा जुबैदा वो कौन सी तेरी नेकी है? तो जुबैदा कहती है कि एक मर्तबा मैं बहुत भूखी थी, मुझको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और मैं बैठी खाना खाने के लिए। लौंडी ने खाना ला करके लगा दिया दस्तरखान पर। मैं हाथ बढ़ा करके खाना चाहती थी कि तब तक मस्जिद से अजान की आवाज आई। मैं अजान की आवाज सुन करके ठहर गई, अपने हाथ को खाने से रोक लिया और जब तक अजान होती रही मैं ठहरी रही, मैं खाना नहीं खाई। और जब अजान खत्म हो गई तब मैंने दुआ मांगी और उसके बाद मैंने खाना शुरू किया। मैंने अपने नफ्स को इतनी देर तक के लिए रोक लिया था, रब ताला ने इसी खुलूस की बरकत से मुझे बख्श दिया। वो नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता है अल मावा। गौर फरमाइए, को ख्वाहिशात नफ्सानी से रोके उसका ठिकाना जन्नत है। वो तूबू इलल्लाह जमीया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम सबके सब मुकम्मल तौर पर तौबा करो रब की तरफ ए ईमान वालों ताकि फलाह पाओ। वो मय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैर यरा वो मय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्र यरा। जो सर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, जो सर्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी देखेगा। देखिए मुख्तसर सी नेकी मालूम हो रही है लेकिन खुलूस पा लिया गया, उस नेकी से बख्शिश हो रही है। प्यारे छोटा सा गुनाह हो वो गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाया करता है। और जरा देखो छोटा सा गुनाह कैसे जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाया करता है। मेरे सरकार जलवा फरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, बात चल रही है नेकी और बुराइयों की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगले जमाने में एक फाहिशा औरत थी, वो बहुत गुनाहगार बहुत सियाकार थी। वो जा रही थी, उसने देखा कि एक कुत्ता है जिसकी जबान प्यास से बाहर निकल आई है और वो कुत्ता अपनी जबान को निकाल करके कीचड़ पानी का चाट रहा है। उस औरत को रहम आ गया, उसने कुत्ते की बेबसी को देख करके रो दिया और उसके बाद उसने अपने दुपट्टे को फाड़ डाला और फाड़ने के बाद कुआं में डाला और डालने के बाद पानी निकाला और निकाल करके निचोड़ करके पानी को जमा किया, फिर कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ताला ने उसकी इस नेकी को पसंद फरमा लिया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया, वो बख्श दी गई। देखिए वो फाहिशा है, गुनाहगार सियाकार है, मगर
ایک مختصر نیکی وہ بے زبان جانور پر رذیل مخلوق پر کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا یہ کام کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اور میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت عابدہ زاہدہ تھی مگر بڑی بے رحم تھی. وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کچھ نہیں سمجھتی تھی. ایک مرتبہ اس نے بلی کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس نے اپنے گھر میں باندھ دیا. بلی چلاتی رہی, نہ اس نے دانا دیا نہ پانی دیا, اور بلی کو مارا. اسی بھوک پیاس کے عالم میں وہ مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو نہ دیکھا بلکہ صرف اس بے زبان جانور پر بے رحمی کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا معاملہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا. بتاؤ یہ چھوٹا سا گناہ دکھائی دے رہا ہے مگر جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے. وہ چھوٹی سی نیکی دکھائی دے رہی ہے مگر جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے. اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکو. تمہارا رب بیان فرماتا ہے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں. فریاد لے کر آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. سرکار بڑا گمبھیر معاملہ ہے, بہت بھیانک فریاد لے کر کے میرے آقا آیا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو تم کون سا فریاد لے کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھیانک فریاد میرے سرکار یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں کفن چور تھا. میں سرکار کفن چرایا کرتا تھا. اگلے زمانے میں جب کپڑوں کی کمی ہوتی تھی تو لوگ کفن چرایا کرتے تھے اور کفن کی چوری کرتے تھے, لے جاتے تھے بازاروں میں بیچتے تھے اور اسی سے وہ کامیابی حاصل کرتے تھے روزی کے لیے. چنانچہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت روزی حاصل کر لی, میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا. کفن کا چرانا بھی وہ اپنے لیے بہت ہی باعث عزت معاذ اللہ سمجھا کرتے تھے. نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کفن چور تھا, میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے محلہ میں انصار خاندان سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو دفن کر کے یا رسول اللہ آئے. جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے ہتھیار کو لیا اور رات کی تاریکی میں یا رسول اللہ میں نکل گیا. اور نکلنے کے بعد سرکار میں قبرستان پہنچا, قبر تازہ تازہ تھی, میں نے ساری مٹی کو ہٹا دیا. یا رسول اللہ مٹی ہٹانے کے بعد جیسے میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو اتارا اور لے کر کے چلنے لگا. یا رسول اللہ اب یہی وہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں, ان کی زبان کانپنے لگتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اور آگے بتاؤ. عرض کرتے یا رسول اللہ اب جو جرم میں نے کیا سرکار وہ بتاتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی سرکار کہ مجھ کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یا رسول اللہ میں قبر میں پھر اتر گیا. یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا. یا رسول اللہ تب تک غیب سے آواز آئی کہ نادان تو نے مجھے ناپاک کر دیا. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حبیب اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہٹاؤ اس کو سامنے سے ہٹاؤ. اتنا سننا تھا. عرض کرتے یا رسول اللہ اب ہٹ جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ دروازے رسول چھوڑ کر کے پناہ کہاں پاؤں گا؟ یا رسول اللہ یہ میرا جرم تھا, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اے میرے سرکار میں اپنے جرم کی سزا آپ کی دربار میں مانگنے کے لیے تیار ہوں. یا رسول اللہ جو سزا اس پر متعین کی جائے یہ میرے آقا میں سہنے کے لیے تیار ہوں. آنسو گر رہے ہیں. نوجوان روتا چلا جا رہا ہے. ایک دن کا عرصہ گزر گیا, 2 دن کا عرصہ گزر گیا, 3 دن کا عرصہ گزر گیا, 4 دن کا عرصہ گزر گیا. نوجوان روتا چلا جا رہا ہے اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا چلا جا رہا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود. تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود. یا رسول اللہ معافی کا پروانہ یہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ نبوت اس کی طرف اٹھاتے نہیں ہیں. راوی کا بیان ہے کہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا. وہ نوجوان آنسو پر آنسو بہائے چلا جا رہا ہے اور دربار رسول سے ہٹ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا. اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو آیت کریمہ پڑھ کر سنا دو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, عرض کر دو میری طرف سے پیغام پہنچا دو جبریل میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا. اور میرے محبوب کو بتا دو کہ میرا بندہ جب رو رو کر کے معافی مانگتا ہے تو یہ محبوب بخشنے والا میں ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور پیغام پر پہنچاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو بخشنے والا میں ہوں. اتنا
सुनना था, मेरे सरकार उठ करके खड़े हो गए और उस नौजवान को अपने सीने से लगाते हैं और उसको मग़फ़िरत की बशारत सुनाते हैं और फरमाते हैं, नौजवान जा, रब का पैगाम तेरे लिए मेरे वसीले से आ गया, तेरी खत्म माफ कर दी गई। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया, गोया उसने खता नहीं की। खुदा की कसम, गुनाहों से तौबा करने वालों की फहरिस्त अगर सामने रखी जाए तो जिन जिन लोगों ने अपने खताओं से माफी मांगी है और खुलूस दिल से रब की बारगाह में तौबा कर लिया है, फतह कामरानी की कितनी मंजिलें तय करते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं। तारीख इसके लिए शाहिद है और तारीख के औराक इसके लिए गवाह है। मुलाहजा करो, वाकया सुनाना मकसद रही है। आज हजरत फुज़ैल बिन अयाज को कौन नहीं जानता। ये फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि अज़ीमुश्शान वली हैं कि वलियों के सरदार कहे जाते हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज सिलसिले कादरिया के 5वें वली वो हैं जो सरकार गौसे आजम से 5 सिलसिला ऊपर पाए जा रहे हैं। वो हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज की पहली जिंदगी बड़ी अजीब गरीब थी। हजरत फुज़ैल बिन अयाज बहुत भारी डाकू थे, इतने बड़े डकैत थे कि कोई भी तिजारती काफिला जिस रास्ते में वो रहते थे उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था जिस पर वो डाका न डाल दिया करते हों। एक मर्तबा यही हजरत फुज़ैल बिन अयाज डाका डाल करके और गए दरिया के किनारे बैठकर कुरान की तिलावत करने लगे। तब तक ताजिरों का सरदार जो था उसने एक डाकू से पूछा, ये तो बताओ कि तुम्हारे सरदार कहां चले गए। उसने कहा, हमारे सरदार दरिया के किनारे गए हैं, रोजा से हैं, वो रोजा अफ्तार कर लेंगे तब वापस आएंगे। ताजिरों का सरदार चौंक पड़ा, या अल्लाह, ये कैसा डाकुओं का सरदार पाया जा रहा है कि जो इतना बड़ा डकैती का गुनाह करके और रोजे से है। चुनांचे उसने कहा, देखो हमारे सरदार को छेड़ना नहीं। लेकिन ताजिरों का सरदार वहां पहुंच गया, देख क्या रहा है कि फुज़ैल बिन अयाज दरिया के किनारे वजू कर रहे हैं। वजू करके वो नमाज अदा किए और नमाज अदा करने के बाद उन्होंने कुरान को खोल लिया और कुरान की तिलावत करने लगे। ताजिरों का सरदार खड़ा हो जाता है। फुज़ैल बिन अयाज ने निगाह उठाई, पूछा कैसे आए हो। कहा, यह सब वजह में बात नहीं आ रही है कि आप इतने बड़े डाकू हैं और इतने बड़े आबिदो जाहिद भी दिखाई दे रहे हैं। तब तक पीछे से दूसरे डाकू ने कहा, हमारे सरदार से बात ना करो, ये रोजा है, जब ये अफ्तार कर लेंगे तब इनसे बात करना। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये रोजा रह रहा है, ये कुरान की तिलावत कर रहा है, ये नमाज अदा कर रहा है और ये डकैती कर रहा है। तब तक हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत कर दी, जिसका मफहूम यह है कि नेकियां बुराइयों को खा जाया करती हैं, मिटा दिया करती है नेकियां बुराइयों को। क्या ये तुम्हें मालूम नहीं है। ताजरों का सरदार वहां से हट गया। वो हजरत फुज़ैल बिन अयाज हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज इतने पाबंद नमाज के थे, इतने पाबंद नमाज के थे। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो नमाज छोड़ बैठे हो और देखने के बाद मस्जिद में कभी हफ्ता में जाते हो तो मुसलमान मालूम होते हो और जब मस्जिद से बाहर आते हो तो पता ही नहीं चलता आम मुसलमान हो कि आपका तशख्खुस क्या है, आपको किस घटघरे में खड़ा किया जाए जो कौम अपनी अलामत को दुनिया में बदल चुकी हो। और मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। ये उलमा की जमात मौजूद है, मैं खुल करके ऐलान कर रहा हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिर किस मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। आज तुम दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार किन किन मामलों में किए हो, जरा अपने तर्ज जिंदगी को देखो। तुम्हारा घर है तो दूसरे कौम की तरह है, तुम्हारा लिबास है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा चेहरा है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा चलना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा बैठना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा खाना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा पीना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा सोना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा जागना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा माहौल है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा तमद्दुन है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारे मुआशियाती और इक्तिसादी हालात है तो दूसरी कौम की तरह है। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। फिर भी तुम कहते हो हम मारे जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम सताए जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम परेशानी में मुब्तला किए गए हैं, फिर कहते हो कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लूट लिया इन दज्जालों ने इस्लाम के वसूल को और बर्बाद कर डाला इन बेईमानों ने इस्लाम के माहौल को दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करके। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो इसी में से है। तुम्हें अब भी नहीं शर्म आ रही है कि तुम अपनी शक्ल इस्लामी शक्ल बनाओ, तुम्हें अब भी नहीं शर्म आ रही है कि तुम अपना माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जरा देखते चलो हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने अलामत को इख्तियार कर लिया है तो ये अलामत किसी न किसी दिन काम आ जा रही है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज
डकैत तो जरूर हैं, पापी तो जरूर हैं, चोर तो जरूर हैं, सियाहकार तो जरूर हैं, बदकार तो जरूर हैं, लेकिन यही हजरत फुजैल बिन इयाज नमाज के इतने सख्त पाबंद हैं, इतने सख्त पाबंद हैं हजरत फुजैल बिन इयाज कि अपने पूरे साथियों को उन्होंने कह दिया था कि हमारे जितने साथी हैं, अगर जमात से कोई नमाज पढ़ना छोड़ देगा तो मैं उसको अपनी जमात से निकाल दूंगा। या अल्लाह, ये चोरों की कैसी जमात है कि पाबंदी जमात की हो रही है, तब तुम हमारे साथ में रह सकते हो। जरा मुलाहजा तो करो फुजैल बिन इयाज की जिंदगी, लेकिन यही जमात की पाबंदी किस तरह से रंग लाग रही है ये भी जरा देखते चलो। यही फुजैल बिन इयाज है, एक पहाड़ की खोह में घात लगाए बैठे हुए हैं और एक तिजारती काफिला गुजर रहा है। उस तिजारती काफिला में एक कारी कुरान थे। आज भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही है और कल भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही थी। चुनांचे वो तिजारती काफिला जैसे उस पहाड़ की खोह में पहुंचा तो सब लोगों ने जान लिया कि हम तो उसी रास्ते पर आ गए हैं जिस रास्ते पर फुजैल बिन इयाज ठहरे हुए हैं चोरी करने के लिए। अब हमारा काफिला जा नहीं सकता है यहां से, फुजैल बिन इयाज लूट लेंगे, फुजैल बिन इयाज डाका डाल देंगे। फुजैल बिन इयाज ने कहा था कि देखो हम घात लगाए बैठे हुए हैं और जैसे हम यहां से हमला आवर होंगे तुम सबके सब फौरन हमला आवर हो जाना, लेकिन जब तक हमारी तलवार ना उठेगी तुम सबके सब अपनी तलवार को उठाना नहीं। हजरत फुजैल बिन इयाज घात लगाए बैठे हुए हैं और ये तिजारती काफिला रवा दवा चला जा रहा है। तिजारती काफिले के सरदार ने कहा, कारी साहब जरा आप आगे बढ़िए। कहा क्यों? कहा कुरान की तिलावत करो। कहा किस लिए? कहा इसी रास्ते में फुजैल बिन इयाज डाकू रहता है, कुरान की तिलावत से मुमकिन है हम सब उसके डकैती से बच जाएं, इसलिए कि कुरान का वो बड़ा आशिक है, कुरान बहुत तिलावत करता रहता है। तो देखो पहले जमाने का दस्तूर ये था कि वो कुरान से अपने ऊपर आने वाली बलाओं और अपने ऊपर आने वाले फसादात को टलवाया करते थे और कुरान की बरकत को हासिल किया करते थे। वाकया सुनाना मकसद नहीं है बल्कि बात बता देना चाहता हूं कि देखो गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में जो जलजला तुर्किस्तान में आया था, जर्मन के अखबार ने उसको छापा और उसका तर्जमा पाकिस्तान से उर्दू में किया गया, फिर हिंदुस्तान में वो मजमून छपा। उसका मजमून का मतलब यह है कि वो जलजला अगस्त में जो तुर्किस्तान में आया था किस बुनियाद पर आया था इसको भी बताता चलो प्यारे। तो बताया जाता है कि समुंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था उस फौजी अड्डा के लोगों ने रक्स सुरूद की एक महफिल मुनाकिद की और उसमें नाचने गाने वाली लड़कियों को बुलाया। जब वो लड़कियां आई नाचने गाने वाली और गाने नाचने लगी, शराब पी करके सब मस्त हुए, तो किसी ने कुरान का एक नुस्खा किसी शराबी फौजी को दे दिया। उसने कुरान को हाथ में लिया और नाचने वाली लड़कियों के पांव में माज़अल्लाह डाल दिया। उन लड़कियों ने उसको रौंद दिया और किसी ने कह दिया कि जब कुरान की हिफाजत रब ताला फरमा रहा है तो कहां है इस कुरान का नाजिल करने वाला। इतना जैसे उन जालिमों ने कहा तब तक समुंदर फटा, उसके अंदर से शोले निकले, वो सबके सब उसमें कहां गए, जल करके खाकिस्तर हो गए, कुछ पता नहीं है। तुर्किस्तान में गुज़श्ता साल अगस्त में जो जलजला आया था, जो 2 लाख के मरने की इत्तला मिली थी पूरी दुनिया वालों को, वो समुंदरी इलाके से अलावा गिरदो नवाह के लोग मरे थे जो जद में आए थे। पता ये चला कि कुरान की बेहुरमती होती है तो जलजला आता है, कुरान को जब चैलेंज किया जाता है तो मुसीबतें नाज़िल होती है, कुरान की बेहतरामी जब होती है तो परेशानियां होती हैं। सुनो देखो देखो कुरान की बेहुरमती कहां कहां नहीं की गई है। क्या तुम्हारे हिंदुस्तान में कुरान की बेहुरमती नहीं की गई है? क्या हिंदुस्तान में कुरान को नहीं जलाया गया है? खुदा की कसम ये हिंदुस्तान तो वो हिंदुस्तान है, एक जलजला नहीं, न जाने कितने जलजलों के झटके इन्हें महसूस करने पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत तुम्हारे लिए जहमत की दावत देती चली जा रही है। तुम बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद कहो हिंदुस्तान में हम फलाह कामरानी की जिंदगी गुजार ले, नहीं गुजार सकते हो। वो शहादत का रंग जरूर जाहिर होगा, हुसैन आदम की शहादत का रंग आज सारी दुनिया में क़यामत तक जाहिर रहेगा और बाबरी मस्जिद का शहादत का रंग भी पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जाहिर रहेगा। मस्जिदों को शहीद करके तुम अमन अमान में रहना चाहते हो, मस्जिदों को तोड़ करके तुम कामरानी की मंजिलें देखना चाहते हो, मस्जिदों को शहीद करके जो हुकूमत करना चाहे उसकी न हुकूमत चली है, न उसकी क़यादत चली है, न उसकी सियासत चली है। हमारे मजहब इस्लाम में जहां भी फतह कामरानी के कदम चूमे गए थे और जहां जहां लोग गए थे फतह कामरानी के झंडा लहराते हुए, नबी कौनैन ने पहली पाबंदी लगाई थी कि किसी भी कौम की इबादत गाह को गिराया न जाए। जिस नबी ने सारी कौम के इबादत गाहों के गिराने की पाबंदी लगा दी हो उस नबी के उम्मतियों की मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। ऐसे ज़हन फिक्र रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यही फुजैल बिन इयाज हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और तलवार लेकर के बैठे हैं, तब तक कारी कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू किया और जिस खोह के पास
पास फुज़ैल बिन अयाज़ बैठे हुए थे। जब कारी कुरान वहां से गुजरे तो वो गुजर रहे हैं और उनकी जबान पर यह आयत करीमा है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से लर्जीदा हो जाएं, जिक्र इलाही से खौफज़दा हो जाएं। जैसे इतना कहा कुरान तिलावत करने वाले ने, तब तक फुज़ैल बिन अयाज़ अपनी घात से तलवार फेंकते हुए बाहर निकले और कहा, ए कुरान तिलावत करने वाले ठहर जा, वो फुज़ैल बिन अयाज़ मैं ही हूं, मेरा ही दिल है। अब जिक्र इलाही से मेरा दिल खौफ इलाही से लर्जा बरअंदाम हो गया। अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। ए कुरान पढ़ने वाले ठहर जा, मैं तेरे सामने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता पर गवाह हो जाओ। तब तक उनके सारे साथी निकल आए और सारे साथियों ने तौबा की। वो ताजिरों का काफिला चला जा रहा है। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कह दिया, जाकर के ऐलान कर देना जहां जहां पहुंचना कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, अब डकैती नहीं करेगा और जितने लोगों का मैंने माल लूटा है वो सारे के सारे लोग आए अपना माल वापस ले जाएं। इस ऐलान का पहुंचना था कि फुज़ैल बिन अयाज़ तो रो रहे हैं, उनका सर सजदा में है, वो शब रोज ज़ारो कतार रब की बारगाह में माफी मांग रहे हैं। मगर जब इत्तला अवाम को पहुंची कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने डकैती से तौबा कर ली है, सही सालिम तिजारती काफिला गुजर आया है, तो कुछ लोग अपने माल को लेने के लिए चले गए और जब फुज़ैल के पास पहुंचे तो कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था, तुमने मेरे काफिले को लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लूं? फुज़ैल ने कहा, हाँ सब ले लो। फुज़ैल बिन अयाज़ के कहने पर वो अपने सामान को ले लेते हैं। तमाम लोग आते हैं, अपना अपना सामान पहाड़ की खोह में से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। एक यहूदी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था और मेरे तिजारती काफिला को आपने लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लूं? कहा हाँ ले लो। उसने अपने सारे सामान को उठाया और उठाने के बाद एक थैली पड़ी हुई थी। कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा ये थैली तुम अपने हाथ से मुझको उठा करके दे दो। हज़रत फुज़ैल आगे बढ़े और उस थैली को अपने हाथ से उठाया और उठाने के बाद दे दिया। कहा ये ले लो। जैसे यहूदी ने उस थैली को लिया और लेने के बाद खोला और जमीन पर उड़ेला, तब तक उसने थैली को सामने रखा। कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाओ। फुज़ैल ने कहा ये क्या बात है? कहा फुज़ैल बिन अयाज़ सुनो, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उम्मत मोहम्मदिया का जो फर्द अपने गुनाहों से तौबा करेगा और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा, अगर वो अपना हाथ मिट्टी को लगा देगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल बिन अयाज़, मैंने इस थैली में कंकरियां भर करके रखी थी, मैं आजमाइश कर रहा था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है तो तुम हाथ लगाओ तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, तुमने इस थैली को हाथ लगा दिया तो ये ठीकरियां सबके सब सोना बन गई है। ए फुज़ैल बिन अयाज़, जिसकी तौबा कबूल हो गई है और जिसके तौबा के कबूलियत की सनद मिल गई है, मैं उसके हाथ पर इस्लाम लाऊंगा, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, ये आपकी तौबा है कि इस्लाम फैल रहा था, आप गुनाहों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप खताओं से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप पापों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था। ऐसी ही तौबा के ताल्लुक से मेरे आका का फरमान है, अब ताइबुन में संद कमन्ना संभाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया, उसने खता नहीं की। लेकिन आज आप अंदाजा लगाओ प्यारे, आपका माहौल किस तरह से पाया जा रहा है, आपने कितनी खताओं पर खताएं की हैं और फिर भी कहते हो कि हमें कामयाबी नहीं मिलती है। सुभानी साहब, हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कामयाब कैसे होगे? ऐसे ही कामयाब हो जाओगे जो नताइज हमारे और आपके सामने हैं और जो किरदार और करतूत हमारे और आपके हैं। सुनो सुनो प्यारे, तुम्हारे घात में तो माहौल किस तरह से लगा हुआ है आपको खबर नहीं है। आपका रहन सहन बिगाड़ा जा रहा है, आपका चाल चलन बिगाड़ा जा रहा है, आपका दस्तूर हयात बिगाड़ा जा रहा है, आपकी मकान और दुकान पर हमले किए जा रहे हैं। ये हमले तो जाहिर हमले हैं, सबसे पहले आपके कल्ब और रूह को मजरूह किया जा रहा है। जब आपके कल्ब और रूह को मजरूह कर दिया जाएगा और आपका कल्ब और रूह का मामला गुनाहों का अंजुमन की तरह से, गुनाहों के अंजुमन की तरह से सज जाएगा और बिल्कुल कल्ब सियाह हो जाएगा, तो अब मुसलमान कैसे रह जाओगे? पापों की गठरी लेकर के कयामत के मैदान में कहां कहां घूमोगे? क्या सहाबा से तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने से तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? अल्लाह के हबीब के दीवानों का हाल तो यह है कि जब वो अपनी खताओं को सोच लिया करते थे तो रब
की बारगाह में रोते रोते, उनके ना दिन का पता चलता था, न रात का पता चलता था, उनकी आंखें तक निकल आती थी रोते रोते, मेरे परवरदिगार हम तेरी बारगाह में अपनी खताओं की माफी मांग रहे हैं। मौला जब तू क़यामत के मैदान में इंसाफ करेगा और परवरदिगार आलम गुनाहों का दफ्तर सामने लाया जाएगा, ए मेरे मौला वहां तो मेरे खिलाफ मेरे हाथ गवाही देंगे, मेरे जिस्म के आधा गवाही देंगे, जिस्म जमीन के जिस हिस्सा पर खता किए हो जमीन का वो टुकड़ा पेश किया जाएगा। ए परवरदिगार आलम ये तेरा बंदा है और इसने मेरे हिस्से पर यह गुनाह किया है, खता की है, बताओ कहां भाग करके जाओगे, रब की गिरफ्त से कहां छुटकारा पाओगे। अरे खुदा की कसम कुर्बान जाओ अपने नबी पर। अगले जमाने के उम्मती अगर खता करते थे तो फौरन उनके गुनाहों की सजा उनको मिलती थी, जो तुमको सजा नहीं मिल रही है। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है जो तुम सजा नहीं पा रहे हो, इसलिए कि मेरे रब का वादा है। रब ताला इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, ए महबूब तुम इनमें जलवा फरोज हो, इसलिए इन पर अजाब नहीं आ रहा है, इनको सजा नहीं दी जा रही है। वरना कौम आद की बस्ती धसा दी गई, कौम समूद को उलट पलट दिया गया, सुअर बंदर बना दिया गया, खिंजीर बना दिया गया। गुनाह की सजाएं उन्हें फौरन मिल जाया करती थी, वो फौरन अपने करतूतों की भयानक सजाएं पा जाया करते थे। मगर तुम पर न तुम्हारी रोजी बंद हो रही है, न तुम पर तुम्हारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, न तुम्हारा चेहरा बिगड़ रहा है, न तुम्हारा लिबास बिगड़ रहा है, तुम्हारा भेद खुल रहा है। ये सब सदका है हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये कम करम सदका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। मुसलमानों जरा देखो ये क्यों तौबा पर जोर दिया जा रहा है कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो। सुनो, जब अपने गुनाहों से तौबा कर लोगे तो जिन जिन गुनाहों से तौबा कर लोगे, जब कल कयामत के दिन गुनाहों का वो दफ्तर खोला जाएगा तो जिन गुनाहों से तौबा किए होगे, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि वो गुनाह फिर तुम्हारे सामने नहीं लाए जाएंगे। अगर तुमने चोरी की है, शराब पिया है, ज़िना किया है, पाप किया है, कत्ल किया है, हुकूक मारा है, गलत निगाहें पड़ी हैं, इन सब से सच्चे दिल से तौबा कर ले रहे हो और रब की बारगाह में रो रहे हो, रब ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली, तो कल जब गुनाह का दफ्तर तुम्हारा खोला जाएगा तो ये खताएं तुम्हारे सामने नहीं लाई जाएंगी। ये कम करम है मेरे सरकार का कि खताओं से तौबा कर लो तो वो खताएं तुम्हारे सामने नहीं लाई जाएंगी। तुम क़यामत के मैदान में रुसवाई से बचा लिए जाओगे। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह, गुनाहों से तौबा करने वाले ऐसे ही हो जाते हैं गोया उसने गुनाह नहीं किया। आओ देखो खताओं से कैसे कैसे तौबा की जाती है। आज शराबखोरी आम हो गई है, नौजवान तबका शराब से नहीं बच पा रहा है, शराब पी पी करके मस्तियों के आलम में अय्याशियों के अड्डों की तरफ घूमते फिरते हैं। नौजवानों तुम अपनी जबान को शराब से बचाओ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि हमेशा हमेशा शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाएगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं जाएगा। भला बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसके बावजूद शराब हाथ में लिए हो। खुदा की कसम सुनो, तुम नौजवान हो, मुसलमान हो, तुम्हारे सामने तो शराब की बोतलें पेश की गई थी और तुम्हारे सामने हसीन हसीन लड़कियां लाई गई थी, मगर तुमने ये कह करके ठुकराया था कि हम कौम मुस्लिम हैं, हम तलवार की धार पर चलना जानते हैं, हम समुद्रों को कूद करके आए हैं इस्लाम का कानून फैलाने के लिए। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये पैगाम आपने हर हर मोड़ पर नश्र किया था और हर हर मोड़ पर आपने ये पैगाम पहुंचाया था। मुसलमानों, आज शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में आ रही है। देखो, अगर शराब की आदत पड़ गई है तो अपने महबूब का वसीला पेश करके अपने रब की बारगाह में माफी मांगो और तौबा करो। रब ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक शराब और जुए में बहुत भारी गुनाह है। इतनी खराबियां शराब और जुए में हैं कि जिनकी खराबियां हदीस करीमा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, शराबी हमेशा हमेशा का वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तुम शराब पीने से तौबा कर लो और अपनी जबान को शराब से पाक रखो, शराब के करीब ना जाओ। ये हुकूमत हिंद भी अजीब तरह से है। पहले तो इसने बसों की दीवारों पर लिखा था कि शराब विष से भी भयंकर है, यानी जहर से भी खतरनाक है, लेकिन अब जब से तकरीरें उलमा की शुरू हुई हैं और यह बयान किया जाने लगा कि तुम आज छतों की दीवारों पर बसों के लिख दिया करते हो कि शराब विष से भयंकर है। 1400 बरस पहले मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि शराब जहर से भी खतरनाक है। आज तुम शराब की खराबी बयान कर रहे हो, जब इन्होंने इस तहरीर को भी गायब करना शुरू कर दिया है। और मैं तो
इसलिए अर्ज करूंगा, ए मुसलमानों, जिस मुल्क में आप जिंदगी गुजार रहे हो उस मुल्क में तो लाइसेंस शराब के लिए दिए जा रहे हैं, भट्टियां शराब की बनाई जा रही हैं और शराब की आमदनी से हुकूमत चलाई जा रही है। जहां पर पार्लियामेंट और असेंबली में लोग बैठ के शराब पर लाइसेंस पर दस्तखत कर रहे हो, वहां के लोग हुकूमत करेंगे तो बताओ मुसलमान किस तरह से आबरूमंदाना जिंदगी गुजारेगा। इसलिए तुम ऐसे मुल्क में जीवन गुजार रहे हो जिस मुल्क में ना शराब पर पाबंदी है, जिस मुल्क पर ना जुए में पाबंदी है, जिस मुल्क में ना ज़िना पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना रंडियों पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना गुनाहों पर पाबंदी है। खुदा की कसम, भारत का सर्वे कीजिए और हिंदुस्तान का जायजा लीजिए तो कितने लाइसेंसी अड्डे अय्याशियों के पाए जा रहे हैं। सिर्फ 7 बड़े शहरों में हिंदुस्तान में 1,84,000 औरतें इस बदफरोशी का धंधा करती हुई हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है। अब आप बताइए कि कितना भयानक माहौल है जिस मुल्क में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। शराब पीना विश्व भी भयंकर है, यह आज ऐलान किया जा रहा है, लेकिन आज से 1400 बरस पहले मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था। इसलिए तुम अपनी जबान को शराब से पाक रखो, शराब के करीब कोई नौजवान ना जाए, शराब को अपने हाथ में ना ले, शराब की तरफ ना झांके, शराब के माहौल की तरफ अपने ज़हन फिक्र को ना ले जाए। सुनो सुनो, हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग हैं जो बहुत बड़े शराबी थे। हजरत बिश्र हाफी इतने बड़े शराबी थे कि शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती थी। एक मर्तबा हजरत बिश्र हाफी का एक नेक अमल जरा देख लीजिए। हजरत बिश्र हाफी शराब के नशे में धुत थे और कहीं जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक नाला पड़ा हुआ है, कीचड़ है, उसमें एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस टुकड़े पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक बिश्र हाफी ने दौड़ करके उसको उठा लिया और उसको धुला और उसको चूमा और चूमने के बाद अपने घर लाए, एक तख्त बिछाया, उस पर एक चादर बिछा दिया, उस पर एक खुशबू लगा दी और खुशबू लगाने के बाद उस पर उस टुकड़े को रख दिया और अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह के नाम, तेरा मकाम यह है जिस गंदे नाले में तू पड़ा हुआ था वहां तो मुझे रहना चाहिए शराबी और कबाबी को। ए अल्लाह, ये तेरा नाम है, इसका मकाम यह है। बिश्र हाफी ने बड़ी दीवानगी के आलम में इस एहतराम को बरकरार रखा। बिश्र हाफी का एहतराम रब ताला ने पसंद फरमा लिया। सवेरे सवेरे बिश्र हाफी के शराब खाने की चौखट पर शहर के जो सबसे बड़े आलिम दीन थे वो आकर के पहुंच गए। उन्होंने आवाज दी और नौकरों से पूछा, कहा बिश्र कहाँ हैं? कहा बिश्र को क्या करोगे? कहा जाओ कह दो कि शहर के सबसे बड़े आलिम आए हुए हैं और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के आए हैं। उनको अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि जाओ मेरे बंदे बिश्र को मेरी तरफ से सलामती का पैगाम सुना दो, उसने मेरे नाम का एहतराम किया है। वो आकर के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंच करके जब आवाज दिया, नौकर ने जाकर के बताया कि सबसे बड़े शहर के आलिम दरवाजे पर आए हैं और आपको अल्लाह की तरफ से सलामती का पैगाम लेकर के आए हैं, आपको आवाज दे रहे हैं। बिश्र का इतना सुनना था कि उन्होंने जूता नहीं पहना, वो नंगे पैर बिश्र भागे, इसीलिए उनको हाफी कहा जाता है। अरबी में नंगे पैर चलने वाले को हाफी कहते हैं। चुनांचे बिश्र दौड़े दौड़े आए और आलिम दीन के कदमों पर गिर पड़े, अर्ज करने लगे, हुजूर शराब खाने की भट्टी के करीब आपका आना कैसे हुआ? आप फरमाते हैं, ए बिश्र, रब की बारगाह में तौबा कर ले, मैं रब की तरफ से तेरे लिए सलामती का और अमन का पैगाम लेकर के आया हूं, तूने कौन सा नेक काम किया है? तब तक बिश्र हाफी ने कहा, शराब की भट्टी को आग लगा दो, सारे शराब के हांडियों को उड़ेल दो, सारे नौकर निकल जाओ, जितने पैसे हैं सब खैरात कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुजूर, मैं आज सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं और आपको गवाह बना रहा हूं अपने तौबा पर। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ए अल्लाह, अब शराब के करीब नहीं जाऊंगा। ए मेरे मौला, मैंने एक तेरे नाम का एहतराम किया तो तूने मुझे सलामती का पैगाम भेजा है। अगर पूरी जिंदगी में गुनाहों से नफरत करता तो तू मुझे कितना बड़ा दर्जा अता फरमा देता। ए मेरे परवरदिगार, अब मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं। हज़रत बिश्र हाफी तौबा करके अल्लाह के वली बन गए। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। तो मामूली दर्जा के वली नहीं बने हजरत बिश्र हाफी, इतने अजीम शान वली बने हजरत बिश्र हाफी कि बिश्र हाफी से लोगों ने कहा, बिश्र जूते तो पहन लो, पैर में कीचड़ न लग जाए। बिश्र ने कहा, अल्लाह ताला ने इस जमीन को फर्श बना दिया है, अब मुझे शर्म आती है कि रब ताला ने जिस चीज को फर्श बना करके बिछा दिया हो, मैं अपने सुल्तान के बिछाए हुए फर्श पर कदम रखूं, ये
मुझसे नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा अच्छा एक काम करो, मस्जिद में हर रोज बिश्र जाते हैं और जब ये मस्जिद की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कीचड़ डाल दो। चुनांचे लोगों ने रास्ते में कीचड़ डाल दिया। अब बिश्र जा रहे हैं मगर उनके कदम कीचड़ पर पड़ रहे हैं, कदम में कीचड़ का निशान तक नहीं है। कैसे आवाज आ रही है, ए मेरे बंदो, जब बिश्र के दिल को मैंने कीचड़ से पाक कर दिया तो उसके पैर में कीचड़ कहां से लगाएंगे? वो बिश्र हाफी है। अत्ताइबु मिनल ज़ंब कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। वो तूबू अल्लाह जमिया, ए लोगों अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौबा करो, अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तुम्हारा रब अपनी बारगाह में तौबा करने का तुम्हें पैगाम दे रहा है और उसके जिन बच्चों ने बंदों ने सच्चे दिल से तौबा कर लिया है और माफी मांग ली है रब की बारगाह में, अल्लाह ताला ने किस दर्जा उनको कुर्बियत अता फरमा दिया और कितना महबूब रब ताला ने उनको अपना बना लिया। खुदा की कसम तारीखें पढ़ो तो ईमान ताजा हो जाया करता है। सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमानों का एक तबका सूद में भी गिरफ्तार दिखाई देता है। सूद खोरी से बचना चाहिए। सूद खोरी से ऐसे बचो प्यारे जैसे आग से बचते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूद खोरी से नहीं बचता है गोया खून और पीप पी रहा है, कयामत के दिन जब उसे सजा दी जाएगी तो इतनी भयानक सजा होगी। इसलिए तुम सूद के करीब ना जाओ। सूद का लेना भी बंद करो, सूद का देना भी बंद करो। आज कितने लोग हैं जो आमतौर से सूद को खा लिया करते हैं और इस गुनाह को बड़ा हल्का गुनाह माज़अल्लाह समझा करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूदखोरी से किस तरह से पाबंदी लगाई है आओ देखो। जब अल्लाह के एक दीवाने को पता चला कि सूदखोरी का बड़ा भयानक गुनाह होता है तो किस तरह से सूदखोरी के गुनाह से तौबा की है आओ देखो, जरा देखो। ये हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत हबीब अजमी वो बुजुर्ग हैं जो औलियाए किराम में वलियों के सरदार तस्लीम किए गए हैं। हजरत हबीब अजमी बहुत बड़े सूदखोर थे, इतने बड़े सूदखोर थे हबीब अजमी कि सूदखोरी पर ये कर्जा बांटा करते थे और इनके कर्जा वसूलने का तरीका यह था कि जिस कर्ज ख्वाह के वहां जाते अगर कर्जा न मिलता और नफा न मिलता तो उतने दिन का वो हर्जाना भी वसूल कर लिया करते थे। हजरत हबीब अजमी इतने बड़े सूदखोर थे, उन्होंने एक गरीब को सूद पर पैसा दे दिया था। जब टाइम पूरा हो गया उसके दरवाजे पर गए मगर वो बेचारा अपने घर पर नहीं मौजूद था। घर के औरत से पूछा, घर वाली ने बताया मेरा शौहर नहीं है। हबीब अजमी ने कहा आज तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे शौहर को मैं जलील करके तब छोड़ूंगा। मेरा कर्जा ले आया है, न तो कर्जा दे रहा है न तो सूद का नफा दे रहा है, आज मैं हर्जाना लेकर के जाऊंगा, भागूंगा नहीं। औरत ने देखा मेरा शौहर जलील हो जाएगा। कहा तो आपका हर्जाना क्या होता है? कहा जो तुम्हारे घर हो वही दे दो, वही हर्जाना लेकर के तब मैं वापस जाऊंगा। उस गरीब के घर बकरे का एक सिरा रखा हुआ था। उसका शौहर कई रोज पर आज बकरे का सिरा लेकर आया था। बच्चों ने देखा तो कहा अम्मी आज हमें गोश्त खाने को मिल जाएगा। मां ने कहा हाँ बेटो ये तुम्हारे बाप का लाया हुआ है, घबराओ नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मां तैयारी कर रही है कि बकरे के सिरे को बकाए। तब तक हबीब अजमी पहुंच गए और इन्होंने मुतालबा किया। मां ने वही बकरे का सिरा उठा करके दे दिया। बच्चों की निगाह पड़ी तो बच्चों की आहें निकल गई। बच्चों ने अपने मां का दामन थामा। अम्मी जान ये तो खाने के लिए आप कह रही थी कि बाप हमारे लिए लाए हैं। मां की आंखें डबडबा गई। मां ने कहा ए बच्चों सबर करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप को गरीब पैदा किया, तुम्हारा बाप गरीब है, वो सूद पर पैसा लाया था। हबीब अजमी सूदखोर आया है, तुम्हारे बाप को रुसवा करने पर तुला हुआ है। बच्चों ने अर्ज किया रब की बारगाह में ए मेरे मौला मेरे बाप को रुसवाई से बचा ले, ए परवरदिगार मेरे बाप को सूदखोरी से बचा ले। ए इलाहुल आलमीन मेरा बाप सूदखोरी की बुनियाद पर हमारी परवरिश कर रहा है, हमारे जिस्म का खून कैसा बनेगा। बच्चों के आंसू निकल आए, मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। हबीब अजमी गए अपने घर और अपनी बेगम को दिया लो ये बकरे का सिरा तैयार करो। जब बेगम ने पका करके तैयार किया आने के लिए बैठे तो देख क्या रहे हैं कि पूरी हांडी खून से भरी हुई है। बेगम चाहती है निकालना और जब देखती है तो चीख पड़ी। बेगम ने कहा ए शौहर मैं आपसे कहा करती थी खुदा का कहर मोल ना लो, ये देखो सूदखोरी का नतीजा जाहिर हो गया, हांडी शोरबे से नहीं बल्कि खून से भरी हुई है। सच फरमाया अल्लाह के हबीब ने कि सूदखोरों को पीप और खून दिया जाएगा खाने के लिए। ए हबीब अजमी मैं तुमसे कहती थी कि रब की बारगाह में तौबा कर लो, रब की बारगाह में माफी मांग लो। हबीब अजमी वही गिर पड़े और अर्ज करने लगे मेरे
مولا مجھے معاف کر دے، پروردگار تیرا عذاب جب میرے لیے دنیا میں ہے تو آخرت میں کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اے میرے مولا تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، میری خطا معاف کر دے۔ حبیب اجمی کے آنسو گرنے لگے، حبیب اجمی رونے لگے، اور اسی رونے کے عالم میں حبیب اجمی اٹھے۔ انہوں نے سوچا لاؤ اپنے توبہ پر کسی کو گواہ بنا لوں اور کسی کے وسیلے سے توبہ کر لوں۔ پہلے زمانے کا دور یہ تھا، اور پہلا دور یہ تھا کہ جب لوگ توبہ اپنی خطاؤں سے کیا کرتے تھے تو کسی بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے، کسی پیر کامل کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کیا کرتے تھے۔ دیکھو یہی سے وسیلے کا پتہ چل گیا کہ جب تم وسیلہ نہ لوگے تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رب کی بارگاہ میں تمہیں توبہ کرنی ہے، جب بھی تمہیں وسیلہ لینا پڑے گا۔ آج کچھ ایسے بدماش ذہن کے لوگ ہیں جو وسیلوں کا انکار کر دیا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حبیب اجمی کو جانے کی ضرورت کیا تھی حسن بصری کی بارگاہ میں؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ حبیب اجمی چل پڑے۔ راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے جو صاحب کشف و کرامت بچے تھے، اس میں کچھ ایسے تھے جو اللہ والے تھے۔ ان بچوں نے دیکھا وہ دیکھو حبیب اجمی آ رہے ہیں، بچوں نے کہا ٹھہر جاؤ، وہ حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے دامن کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ جہنمی ہو جائے گا، اتنا بڑا گنہگار وہ آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا حبیب اجمی اور زاروں قطار رونے لگے، اے میرے مولا بچے بھی میرے گناہ سے بھاگ رہے ہیں، پروردگار اب مجھے پناہ کہاں ملے گی؟ یہ بچے بھی میرے دامن کی ہوا سے پناہ مانگ رہے ہیں، میرے مولا میری غلطی معاف کر دے۔ حبیب اجمی کے آنسو گر رہے ہیں۔ حبیب اجمی پہنچ گئے حضرت امام حسن بصری کی خدمت میں۔ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ پر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اور توبہ کر کے جب واپس آنے لگے تو وہی بچے پھر راستے میں کھیلتے ہوئے مل گئے۔ ان بچوں نے پھر حبیب اجمی کو دیکھا تو بچوں نے کہا اب کھیل بند کر دو، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں، اگر ان کو ہم لوگوں کا گرد و غبار اڑ کر کے لگ جائے گا تو گنہگار ٹھہرو گے۔ حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں اس لیے رک جاؤ۔ اب حبیب اجمی کا حوصلہ بڑھا، حبیب اجمی نے سن لیا ان بچوں کے ذریعے سے، یہی بچے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ دامن کی ہوا لگے گی تو گنہگار ٹھہرو گے، مگر یہی بچے ہیں جو اعلان کر رہے ہیں کہ حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں، اب اگر ہم لوگوں کا گرد و غبار اڑ کر کے پڑا تو گنہگار ٹھہرو گے، اس لیے کھیل بند کر دو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ حبیب اجمی کو حبیب کس نے بنایا ہے؟ توبہ نے۔ بشر حافی کو ولی کس نے بنایا؟ توبہ نے۔ فضیل بن عیاض کو سید الطائفہ کون بنایا؟ توبہ نے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ تمہارے رب کا فرمان ہے وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رب کی بارگاہ میں مکمل طور پر توبہ کرو۔ مومنوں کو توبہ کا حکم ہے، کافروں کو تو حکم ہوتا ہے وہ اسلام لائیں، پہلے وہ کلمہ پڑھیں، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیں گے ان کے لیے توبہ کہاں ہے، ان کے لیے نماز کہاں ہے، ان کے لیے روزہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے ان کے لیے ایمان ہے، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رب کا حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم سے خطا ہو رہی ہے اور لغزش ہو جا رہی ہے، اے میرے بندے تم اپنے خطاؤں کی معافی میری بارگاہ میں مانگو۔ بندوں سے خطا ہوگی، ضرور لغزش ہو جائے گی۔ آؤ دیکھو خطا دونوں طرف سے ہوئی ہے، حضرت میں عرض کرتا چلوں ابلیس سے بھی غلطی ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی ہے۔ ابلیس کے تعلق سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم کا سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا، غلطی اس نے کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رب نے ارشاد فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، حضرت آدم درخت کے قریب چلے گئے، لغزش ادھر سے بھی ہو گئی ہے۔ دونوں خطاؤں میں فرق ہے، ایک خطا ہو رہی ہے گھمنڈ سے ابا واستکبرا، تو گھمنڈ سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور لغزش سے جو غلطی ہوتی ہے اگر بندہ نادم ہو کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے تو اس کی توبہ قبول ہو جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابلیس سے سوال کیا ابلیس تم نے ابن آدم کی کمر کیسے توڑی، تو ابلیس نے کہا میں نے ابن آدم کی کمر گناہ کروا کر کے توڑ دیا، زنا میں نے اس سے کروایا، جھوٹ میں نے اس سے بلوایا، قتل میں نے اس سے کروایا، شراب میں نے اس سے پلوائی، بے حیائی میں نے اس کو مبتلا کر دیا، یہاں میں نے اس کو مبتلا کیا، وہاں میں نے اس کو مبتلا کیا، فلاں جگہ میں نے اس کو مبتلا کیا، اس طرح سے میں نے اس کی کمر توڑ دی، تقویٰ اور طہارت کی۔ پھر ابلیس سے پوچھا گیا کہ تیری بھی کبھی کمر ٹوٹی ہے؟ تو ابلیس نے کہا ہاں میری کمر تو بڑی آسانی سے ٹوٹ گئی، میں نے تو اس کو گناہ کروا کر کے اس کی کمر کو
तोड़ा है, लेकिन उसने मेरी कमर को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। कहा तेरी कमर को कैसे इब्ने आदम ने तोड़ दिया? कहा इब्ने आदम अपने गुनाह को सोच करके रब की बारगाह में शर्मिंदा हुआ, रो पड़ा, तौबा किया, मेरी कमर टूट गई। उसने तौबा करके मेरी कमर को तोड़ दिया। इसलिए ए मुसलमानों, तुम्हें इब्लीस की कमर तोड़ देनी है तो तौबा करके तोड़ देनी है। तुम रब के बारगाह में तौबा करके जरा देखो दो, जो तौबा कर लेता है उसकी रोजी बढ़ जाया करती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, तुम अला तहारते फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाको साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमान कितना आम है, जब तौबा करोगे तो पाको साफ रहोगे। यहां पाको साफ रहने का मतलब सूफियाए किराम फरमाते हैं गुनाहों से पाको साफ रहो, सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही पाको साफ नहीं। जाहिरी तर्जमा हदीस शरीफ का तो ये होता है कि जिस्मानी तौर पर तुम पाको साफ रहो, मगर सूफिया इसकी वजाहत बयान फरमाते हैं कि तुम अला तहारते फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाको साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। तुम गुनाह छोड़ दो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम खता छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम पाप छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम बेहयाई छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम शराब छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम झूठ छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम सूदखोरी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम गीबत छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी। रोजी बढ़ती कैसे है और रोजी घटती कैसे है, इसको भी सुन लो प्यारे। गुनाह करने से रोजी घट जाती है, झूठ बोलने से रोजी घट जाती है, गुनाह करने से रोजी घट जाती है। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ और बाप का चेहरा सवेरे सवेरे मोहब्बत से देखा करे, अल्लाह ताला उसकी रोजी को बढ़ा देता है। यह हदीस शरीफ है। अब रोजी बढ़ने की शिकायत ना कर लो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाए तो अपने बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर बाप मौजूद है, अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर माँ मौजूद है और अगर माँ बाप दोनों मौजूद नहीं है तो इनसे मोहब्बत किया करो, इनके हक में इसाले सवाब किया करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। माँ और बाप को नाखुश करने के बाद तुम कहो कि तुम्हारी रोजी बढ़े, नहीं बढ़ सकती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं कि माँ और बाप की दुआएं औलाद के हक में मकाम कबूलियत में नबी की दुआ के बराबर हैं। इसलिए तुम अपने माँ और बाप को खुश रखा करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। वो तूबू इलल्लाह जमीया, तुम सबके सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, ए ईमान वालों फलाह पा जाओगे। अगर रोजी की बुनियाद पर फलाह समझ रहे हो हमारे लिए है तो जरा तौबा करके देखो तो आज कितने लोग हैं जो अपनी माओ को सताया करते हैं, अपने बाप को तकलीफें दिया करते हैं। माँ और बाप को तकलीफें ना दिया करो। माँ और बाप को तकलीफ जो देने वाली औलाद होती है वो औलाद कभी भी नहीं पनपती है। प्यारे सुनो, अगर माँ और बाप को तकलीफ दे दी हो तो रब की बारगाह में तौबा करो और माँ और बाप को राजी कर लो। माँ और बाप राजी हो जाएंगे तो तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर जरा गौर तो करते चलो। जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिस वसूल को नबी ने मुरत्तब नहीं फरमाया? जिंदगी का कौन सा दस्तूर है जिस दस्तूर को नबी कौनैन ने तुम्हें दिया नहीं है? जिंदगी का कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अता नहीं की है? ये वही हिंदुस्तान तो है जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं। आज हम और आप कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं और बंबई की सरजमीन पर रह करके या खुदा की कसम याद रखो, बंबई ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का तो हर शहर अब अय्याशियों का अड्डा बन गया है। गुनाहों की इतनी आम मामूली बातें और आम माहौल हो गया है गुनाहों का कि मुसलमान अपने घर के दरवाजे से निकले तो शराफत और तकद्दुस का खून हो जाया करता है। मुसलमान आपको ऐसे माहौल में जीवन बिताना है, ये वही भारत की सरजमीन तो है, ऐसे माहौल में आपने जीवन बिताया है। आपके सामने आपका तारीख का एक वर्क उलट दूं, आप तो सिर्फ भयानक जराइम पढ़ते हैं, आपको किताबों के पढ़ने का मौका नहीं है और आप अपनी तारीखों को पढ़ते नहीं, इसलिए आप जान नहीं पाए। आपके सामने आज से पहले कम गुनाह नहीं लाए गए थे, आपके सामने आज से पहले कम परेशानियां नहीं पेश की गई थी, ऐसे ऐसे गुनाह आपके सामने पेश किए गए थे, लेकिन आपने उन गुनाहों को ऐसी ठोकर मार दिया था और इस तरह से आपने दंतशिकन जवाब दिया था। प्यारे सुनो, कैसे कैसे गुनाहों से आपने तौबा की और ठोकर मार करके इस्लाम को बढ़ाया था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन एक मुल्क पर हमला करते हैं और दो मुजाहिद पकड़ लिए गए। जब दोनों मुजाहिद गिरफ्तार किए गए तो एक मुजाहिद को तो बादशाह ने सजा दिलवा दी और एक मुजाहिद को वजीर ने चिरौरी मिनती करके रोक लिया। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। वजीर ने बादशाह से कहा कि इस नौजवान को छोड़ दीजिए, इसको हम दीन ईसाइयत में ले लेंगे और जब ये दीन मसीहत में आ जाएगा तो इस नौजवान से हुकूमत के लिए काम बहुत लिया जाएगा, इसलिए ए बादशाह इसको न मारा जाए। बादशाह ने कहा सुनो, ये मुसलमान है, मुसलमान और मुसलमान फांसी के फंदे पर भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान जेल में हथकड़ी पहने भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान को कैद खाने में डाल दो जब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान समुंदर की सतहों पर तैरता हुआ जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा,
مسلمان آگ کے شعلوں میں کود جائے گا تب بھی مسلمان رہے گا، ہر موڑ پر مسلمان رہے گا، یہ مسلمان ہے۔ وزیر نے کہا لیکن سلطان یہ بھی سنو، یہ عرب ہے، اور عرب کو حسیناؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے حسن کے بلبوتے پر اس کو دین مسیحیت میں داخل کر لے گی۔ کہا لے جاؤ، ٹھیک۔ اس نوجوان کو وزیر اپنے گھر لایا، اپنی لڑکی سے کہا بیٹی دیکھو اس نوجوان کو اسی شرط میں بادشاہ سے چھڑا کر کے لایا ہوں، اس نوجوان سے حکومت کا کام لینا ہے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک۔ ایک کمرے میں نوجوان کو بند کیا گیا۔ اللہ کے حبیب کے یہ دیوانے ہیں، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری کا واقعہ یہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں نوجوانوں کا ماحول ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ نوجوان رات کی تاریکی میں بیٹھا ہوا ہے کمرے میں، ایک چھوٹا سا چراغ ٹمٹما رہا ہے، تب تک ایک لوڈی جا کر کے پہنچی، حسین و جمیل خوبصورت ہے، اور جیسے وہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنے حسن کو پیش کیا نوجوان کے سامنے، مگر نوجوان ادھر نہیں دیکھا، اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگا، نیت باندھ کر کے اپنے رب کو یاد کرنے لگا۔ وقت گزر گیا، رات پوری گزر گئی، جب دوسری رات آئی تب پھر اس نے ایسے ہی کیا، جب تیسری رات آئی تو پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ اب تیسری رات اس نے کہا اے نوجوان، میں تم کو تو دین عیسائیت میں نہ لے سکی، لیکن تم نے اپنے دین کی طرف مجھے مائل کر لیا، اب میں فتنہ میں اور فساد میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تمہارے دین اور تمہارے دین کے قانون سے بہت متاثر ہو چکی ہوں، مجھے اسلام کا قانون پیش کرو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر لو۔ اس نوجوان نے اسی قید خانے میں اس لڑکی کو کلمہ پڑھا کر داخلے اسلام کیا۔ اب لڑکی نے کہا دیکھو ہمارا تمہارا رہنا یہاں مناسب نہیں ہے، میں گھوڑے مگواتا ہوں، اب یہاں سے نکل چلائیں۔ وہ دونوں نکل گئے گھوڑے سے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندان خانے میں بھی مسلمان نے اپنے تقوی اور تقدس سے اسلام کو فروغ دیا ہے۔ یہ وہ قوم مسلم کی جماعت تھی کہ قید خانے میں رہ کر کے بھی اپنے تقوی اور طہارت کو نہیں چھوڑا تھا، اور تمہیں درس زندگی دیا تھا تم مسلمان قوم ہو، عیاشی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم گناہ کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم چوری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم بے حیائی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم شراب کے اڈوں کو قائم کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ اپنے تقدس سے اور اپنے تقوی طہارت والی زندگی کو ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان کو بھی اپنے دامن میں لیتے جاؤ، اور ان کو بھی اپنے ماحول میں رنگتے جاؤ، اور ان کو بھی یہ پیغام سناتے جاؤ کہ مومن بن جاؤ تو تمہارے لیے بھی دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے، کہ وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو تم سب کے سب فلاح پا جاؤ گے۔ آؤ سنو یہ جشن غریب نماز ہے، توبہ کی برکت سماعت فرما لو۔ دو بزرگ ایسے پائے جا رہے ہیں اولیاء کرام میں، ایک تو سرکار غوث اعظم اور دوسرے سرکار خواجہ غریب نواز عطا رسول رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سرکار غریب نواز عطا رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ سرکار عطا رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد حضور سرکار عطا رسول اپنی پلکوں سے مطاف کو جھاڑ رہے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے معین الدین کیا مانگتے ہو مانگ لو۔ عرض کرتے ہیں پروردگار میری منشا جو ہے تو جانتا ہے، معین الدین میں عطا کروں گا مانگ لے۔ عرض کرتے ہیں میرے مولا تیرے علم میں ہے، پھر ندا آتی ہے معین الدین مانگ لے۔ عرض کرتے ہیں مولا میری منشا تیرے علم میں ہے، تب تک آواز آتی ہے غیب سے اے معین الدین، اے معین الدین جا تیرے سلسلہ کے جتنے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تب تک عرض کرتے ہیں میرے مولا ان کی بخشش کا طریقہ کیا ہوگا؟ ندا آتی ہے معین الدین جو بھی تیرے سلسلے کا ہوگا جب تک اس کی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو جائے گی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی، میں تیرے سلسلے کے ہر فرد کو توبہ کی توفیق دے دوں گا تب اس کو موت آئے گی۔ یہی سلسلے چشتیہ کی بڑی عظیم برکت ہے، اور یہی سلسلے قادریہ کی برکت ہے۔ دو ہی بزرگ تو ایسے ہیں، سرکار غوث اعظم نے بھی فرمایا ہے کہ میرا نام لیوا سچا دل سے جو رہے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہ نصیب ہو جائے گی۔ تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ قادری کا قادریوں میں اٹھا حضرت عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور سرکار عطا رسول غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرا نام لیوا جو محبت سے رہے گا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے جو جشن غریب نواز منایا جاتا ہے۔ اس
اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے غربت و افلاس کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے پریشانی کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ سلطان الہند تمہارے ہیں، غریب نواز تمہارے ہیں، غربت کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، افلاس کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، مصیبت کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، پریشانی کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، بھیانک ماحول کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، دشواریوں کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ جب ہمارے پاس غریب نواز ہیں اور ہم غریب نواز کے ہیں تو ہمارا نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ خواجہ ہندو در بارہالا تیرا، خواجہ ہندو در بارہالا تیرا، خواجہ ہند و در بارہالا تیرا، اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد۔ یہ کیسٹیں ہیں، آپ جائیے گا تو کیسٹوں کو لیتے جائیے گا، اس کا ہدیہ 60 روپے ہے۔ آنکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت لا کو شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ اجمیری، الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ بہرائچی، الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ حضور نظام الدین دہلوی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یا اللہ جو کچھ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر جمیل ہوا قبول فرما۔ مولا ذکر فکر میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو تو ہم سب توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دے۔
या अल्लाह हम सब लोग अपने छोटे बड़े गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, माफ कर दे। या अल्लाह हम सब लोगों की रिस्क हलाल में बरकतें अता फरमा। मौला आफात बलैयात से बचा। या अल्लाह अपने महबूब और अपने महबूब के महबूबों के सदका में नमाज रोजा हज ज़कात की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब बंदे हुजूर सरकार गौसे आजम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर सरकार सैयदना नज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर सरकार बहाउद्दीन कादरी, हुजूर सरकार मखदूम माहिमी, हुजूर सरकार सैयदना आला हजरत, इन अपने तमाम नेक बंदों के सदका तुफैल में हम सबको शादो आबाद रख। मौला हम पर फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। इलाहुल आलमीन इस मुकद्दस महफिल में तेरे महबूब के नाम पर जितने हाजिर हैं सबकी हाजिरियों को कबूल फरमा ले। मौला अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमा दे। या अल्लाह जब तक हम इस दुनिया में रहें तेरा और तेरे महबूब का बनकर रहें, जब इस दुनिया से जाएं तो ईमान पर खात्मा फरमा। या अल्लाह और कब्र से हश्र में उठा तो अपने हबीब की शफात नसीब फरमा। मौला अपने हबीब की शफात नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो मायूस तुझसे उम्मीदवार। क़ाला ताला फी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मुख्तलफल मलवान व ताक़बल असरान व कर्रल जदीदान व इस्तक़ल्लल फरक़दान वबल्लिगूहु अरवाहिल बैती मिन्नत तहियता वस्सलाम मुबारिक वसल्लिम अलैहि कसीरा बिजाहि सय्यिदिन नबील अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीमिल करीम। आमीन या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन बिही नस्तईन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नजद अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 2309